वो गेट लगा दिखा। Fan, AC, anyone? All good? Very good. Now, so good morning, everyone. And today we are going to start, or before we start, let us first see what we did in the last class. Correct. So, in the first class, we first saw that on the basis of abiotic factors and their different response, species can be divided into either uri or thermal. Sorry, uri or steno. And depending upon temperature, depending upon salinity, the word uri and steno is added as a prefix. Correct. Now, moving forward, फिर हमने देखा कि responses जो हैं species की different responses को हम लोग categorize कर सकते हैं in regulation, conformer, migration, suspension, right? And then we comes to the behavior which is shown by poikilotherm. Correct. So there are overall अगर हम लोग देखें तो morphological changes, physiological changes and other changes are quite visible there. Fine. Now moving forward, उसी pretext में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि when living organism interact with another living organism, means when the interaction is with the biotic component, it can take various relationships. It can take the form of various relationships such as mutualism, correct, where one is benefited and the other is at loss. What do we call? When the one is benefited, when one species benefits and the other makes a loss, with that interaction, that relationship is known as predatorism, right, or parasitism. Very good. Now you come to me but don't harm me. We call it plus and 0, right? A man is harmed, it means amensalism. One species makes a loss while the other shows no effect. So minus and 0 leads to amensalism. Very good. Now tell me, easy protection, please tell me that when I talk about remora and shark, it is a kind of which type of interaction? Commensalism, right? Very good. बहुत अच्छी बात है. Remora and shark is commensalism. Now, cattle egrets and cattle grazing. Egrets moving around the cattle. We call it commensalism itself. Now, but when the cattle is also benefiting the elephant, or when the cattle, when those birds are also helping the rhinos, the cattle, the elephant, right? So in that case, it becomes mutualism. ठीक है? So यहाँ से एक question 100% आप expect कीजिए. Now, how the questions will be asked, उसको थोड़ा सा आज हम लोग practice करेंगे once we cover today's class. Correct? So I have created some 10 questions for you, जो हम लोग we will practice it at the end of the class. Fine? ठीक है? Now, let us start today's class. We ended the last class on while I wrote ecosystem and I said that every ecosystem, irrespective of land, irrespective of water ecosystem, aquatic ecosystem, land ecosystem, every ecosystem has minimum 4 components, right? Or we can say that every ecosystem has 4 common components. हर ecosystem में जन्म होगा जिसको productivity बोलेंगे, हर ecosystem में death होगा जिसको decomposition बोलेंगे. Correct?
और प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन के बीच में, बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, there will be energy which will be flowing in that ecosystem. Fine. How the energy flows? Grass ka energy goes to the goat, goat ka energy goes to the leopard. Fine. So this way energy always flows in an ecosystem. And then we will see ki in this ecosystem what is the significance of the gaseous cycle which takes place throughout. Just plants, they absorb carbon dioxide, and plants, they say that they give out oxygen. Fine. So it means the carbon cycle is also associated with that. Then we have phosphorus, chlorine, sodium, phalna, dimkana. All these different chemicals, they are absorbed, they are released. They are absorbed, they are released, right? And this cycle goes on. So this cycle, we call it nutrient cycle, or you can also call it biogeochemical cycle. Correct? So every ecosystem has these four components, four common points which we have to keep in mind. And out of these four common points, some key topics of ecosystem will emerge, जिसको हम लोग को लाहे करके देखना है. ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो today's agenda is we are going to see the exact detailed classification of productivity, decomposition, energy flow and nutrient cycle. And then we will be seeing some key terms associated with environment and the ecosystem part, जिसको हम लोग बोलते हैं ecological succession, ecological pyramids. Okay, so we are going to see these areas in today's class. Now, can we start? Very good. So, the components of ecosystem. And the first component is productivity. Now, listen to me carefully. When it comes to productivity, सवाल है कि कौन प्रोड्यूस करता है इकोसिस्टम में? Who produces? Plants. Very good. Plants, they produce. Now, when plants produce, so the whatever the plants they produce, we call it primary productivity. Correct? Primary. The amount of energy which is produced by plants, we call it primary productivity. And when plants are eaten by animals, and whatever energy the animals they produce, we call it second. बस ये दो कंसेप्ट इसमें जानना है. ठीक है. Now whatever we eat, suppose whatever we eat, उसको digest करने के लिए we kind of lose some energy in the respiration, right? Correct? So whatever is the net result, whatever is left at the last, we call it net productivity. और whatever जो respiratory loss के बाद जो हमारे पास बचता है, वही हमारे पास कहानी है. तो नियम ये कहता है, इधर सुनिए. The नियम says that if an animal is of 10 kg, correct, whatever energy it has, whatever energy in kilocalories it has, only 10% is transferred to this level. Now 10 kg ka 10% is, 10 kg is the mass. I am not talking about energy here, right? अगर energy में आप जाएंगे, suppose an animal has 10 kilocalories, 10 kilocalories. So in that case, 10% of 10 kilocalories, 1. So only this much goes to the higher animals. मतलब trophic level में ऊपर वाले जानवर को इतना ही जाता है. बाकी 90% lost. Fine. Less 90% is lost. Now, if this animal is eaten by some another animal, so how much energy will be transferred to this part? 10% of 1 is 0.1 or 0.01? 0.1. Very good. So this will go to 0.1 kilocalorie. Now again 10% will be transferred here. So this follows. And इसी को हम लोग बोलते हैं secondary productivity. Right? This is primary productivity. This is secondary productivity. Things that we have to know. Now, you can see the world map and you can also see the world map in your atlas. Fine. If I ask you the productivity, ध्यान से सुनिए सब कोई, the productivity of oceans are more than the productivity of the land. The productivity of oceans are more than the productivity of the land. यानी इसको दूसरे complex sense में अगर हम लोग देखें,
the aquatic ecosystem productivity is more than the terrestrial productivity of the earth. Correct? Incorrect? You see the area inhabited by oceans. Oceans oceans they cover how much percentage of the earth, the entire earth का area? आइडिया है? याद है? 70% के आसपास पानी है और 30% ऐसा लैंड है बोल के. ठीक है, याद है ना? थोड़ा बहुत याद होने से ठीक है. ज्योग्राफी में ऐसे सर लोग पढ़ाता है. अभी इतना याद है तो बहुत अच्छा बात. नाउ टेल मी, प्रोडक्टिविटी वाइज ओशंस विल हैव मोर और लैंड विल हैव मोर? एवरीबॉडी -0.6 ट्री होना पड़ेगा ना दोस्त. Who will absorb energy? You need to have trees, right? You need to have plants. Despite covering 70% of the earth's area, they don't have, first of all, they don't have adequate sunlight reaching to the floor of the ocean. Are you getting my point? So sunlight is limited. Sunlight is limited. अब नीचे प्लांट है, नो डाउट, ओशन पे प्लांट दिखता है, फ्लोर पे दिखता है ना दोस्त, तो सनलाइट तो होना पड़ेगा ना जी. लाइट कहां से आएगा, एनर्जी कहां से आएगा? सनलाइट से. प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट. So how did you say that oceans will have the highest productivity? This is a UPSC 2018 question. UPSC I am talking about. Forget about state PCS. Consider the following statements about primary productivities. ये ऐसा क्वेश्चन आया था, उसमें लिख रहा है फर्स्ट पॉइंट कि ओशंस हैव हायर प्रोडक्टिविटी देन लैंड. तो बाय डिफॉल्ट सबको हम लोग 70% का लॉजिक लगाएंगे. ओशंस हाँ ज्यादा एरिया है, ज्यादा होगा. बट माय फ्रेंड, अंडरस्टैंड हियर that when sunlight comes, only 50% of sunlight is good for, is considered okay for photosynthesis. इसको हम लोग बोलते हैं PAR, photosynthetic active radiations. Only 50% of sunlight is useful for photosynthesis process. Now photosynthesis you understand? पक्का ना? Very good. अब इस 50% में से hardly 4% is utilized by plants. Now if I say plants, it means I can also write here autotrophs. Now कुछ लोग को याद आएगा, कुछ लोग को नहीं याद आएगा. Autotrophs are those who make their own food. So depends upon your understanding and depends upon your glossary. So understanding wise you understand plant, but exam में plant नहीं ना आएगा यार. अरे yes or no? तो गांवली एग्जाम है नहीं, तो एग्जाम में आएगा ऑटोट्रॉफ, फिर बोलेगा यार समझ नहीं आ रहा है दोस्त. तो नोट्स में, द नोट्स दैट यू विल बी रीडिंग, उसमें दीज टर्म्स आर ओनली यूज्ड. पर हम आपको क्लास में समझाने के लिए प्लांट बोल रहे हैं. ठीक. ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, यू रिमेंबर हेट्रोट्रॉप्स? नो? याद आ जाएगा दोस्त, वंस यू रीड इट याद आ जाएगा. सब चीज पढ़ाएंगे तो फिर मजा नहीं, कुछ नोट से भी पढ़ना है. और आपको मैं एक बात बता देता है, इफ 15 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एनवायरनमेंट, if 15 questions are asked in environment, except 1-2 current affair questions, none of the question will be asked beyond what I am teaching on the whiteboard and whatever notes that is given to you. None of the questions will be asked out of that printed notes and this what I am giving here, except 1 or 2 current affairs, which I am not sure of. But ecosystem, ecology में हमेशा static question आता है, और जो आएगा आपका printed notes में है, और जो बचेगा वो यहाँ है फ्यूचरिस्टिक. ठीक है, इसका हमेशा एक कॉन्फिडेंस अपने पास रखिएगा, ज्यादा ऐसा भागने का जरूरत नहीं है दोस्त. ठीक. तो 50% सनलाइट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. आउट ऑफ दैट 50% only 4% is utilized by plants, and whenever plants utilize this sunlight to make organic matter, to make food, right, the amount of photosynthesis से food generate होता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. फिर इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को खाया जाता है. कौन खाएगा? herbivores will eat, and herbivores they, whatever they produce the energy, we call it secondary productivity. ठीक है. They produce obviously less because they lose some energy in respirations. Fine. So please write primary productivity once. एक बार बस लिख के खत्म करिए. लिखेगी, it is the rate at which primary productivity, it is the rate at which the producers
that is green plants, comma algae, green plants, comma algae, 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 convert solar energy into chemical energy through photosynthesis. It is expressed in ग्राम पर स्क्वायर, ग्राम ऐसे लिखिए, इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम मीटर स्क्वायर ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर, ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, करेक्ट, ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर, और 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 किलो कैलोरी, KCAL, और किलो कैलोरी, ठीक है, और किलो कैलोरी। उसके बाद प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑफ टू टाइप्स, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी and net primary productivity, gross primary productivity and net primary productivity, net primary productivity। उसके बाद GPP, इसमें लिखे GPP, gross primary productivity, GPP is defined as total organic matter produced by plants, total organic matter produced by plants through photosynthesis, उसके बाद लिखिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी is the total energy left after plant use some energy in respiration, 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 plants will also, I mean, they will be also losing out some energy। digestion करते समय तो पसीना आता है ना यार, खाने के बाद गर्म लगता है कि नहीं? Why? Because the body is actually trying to absorb whatever you have eaten, and while digestion, I mean, some heat will be lost from the body। तो ग्रॉस मतलब टोटल, और नेट मतलब, जैसे मान लीजिए, सुनिए ध्यान से बात, सपोज कीजिए आप जा रहे हैं सुबह गंगा मार्केट में मजदूरी करने, ठीक, बोरा उठाने जा रहे हैं आप सब्जी का, तो टोटली यू अर्न 400 रुपीज इन अ डे, बट वाइल अर्निंग 400 रुपीज, मान लीजिए पढ़िएगा नहीं तो मजदूरी करना पड़ेगा ना यार, तो मजदूरी करने गए हैं, तो उसके बाद मजदूरी करते समय यू अर्न 400, बट यू विल ऑल्सो गिव योर सेल्फ अ ट्रीट, हो जाएगा चलो आज थोड़ा सा कॉफी पी लेगा, थोड़ा चाय पी लेगा, थक गया तो 50 रुपीज आप उसमें खर्चा कर दी, तो घर जाके कितना लेके जाएगा? 350 ही तो ना यार, वही है कहानी, यू अर्न 400 बट यू एक्चुअली डू सम expenditure on you, so whatever is left is 350। now listen to me, I am asking a question, I will repeat only once। question is,
consider the following statement. Tell me whether it is correct or incorrect. Okay. Statement is, yes, statement is herbivores. Okay, herbivores. Everyone understand herbivores? Herbivores. Okay, let me frame first. Herbivores gets 10% of GPP when they consume autotrophs. Herbivores gets 10% of GPP when they consume autotrophs. Correct? Incorrect? Incorrect. Why? Herbivores consume, the herbivores gets only 10% of the GPP, gross primary productivity. Herbivores get 10%, only 10% of the GPP as per environmental law. Why? Why incorrect? Huh? तो वही तो हम बोलते रह रहे हैं ना कि 90% is lost. I'm not saying that. I'm saying that कि herbivores when they consume plants, they get only 10% of the gross primary productivity of the plant. Correct or incorrect? Why incorrect? जीपीपी तो टोटल प्रोडक्शन है. प्लांट लोग का पास कितना बचता है? प्लांट के पास क्या बचता है? एनपीपी ने जी. तो एनपीपी का ना 10% ले जाइएगा. अरे सुनो, यही है छोटा छोटा चीज जो एग्जाम में अभी तो हम ऐसे पूछ दिए तो आप लोग अलर्ट हो गए ना, हो जाएगा अभी कुछ तो है इसमें, गलती ही होगा ज्यादा से ज्यादा चांस है. बट एग्जाम हॉल में क्या होगा कि फ्लो फ्लो में अभी शुरू में पॉलिटी बनाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, ठक से गलत हो जाएगा, माइनस. तो जीपीपी इज टोटल प्रोडक्शन, बट जीपीपी इज नो मीनिंग एक्चुअली. लास्ट में प्लांट के पास खुद ही बच रहा है एनपीपी, तो एनपीपी का ही तो एनर्जी ऊपर जाएगा ना. जीपीपी तो कभी हुआ ही नहीं एक्चुअली. कहने को हुआ बट खर्चा तो हो गया ना. तो हम घर पे तो 350 ही लेके आ रहे हैं, राइट. तो 350 से मेरा परिवार वाला लोग हमसे कितना ले लेगा, वही तो मेन इंपॉर्टेंट है ना यार. आप 400 कमाए, 500 कमाए, 600 कमाए, दैट डजंट मैटर, राइट. सो रिमेंबर दिस पार्ट. लिखिए एक पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए कि राइट दैट कि एनपीपी इज दैट एनर्जी, नहीं, एनपीपी इज द एनर्जी. लास्ट पॉइंट एक, एनपीपी इज द एनर्जी available to herbivores. NPP is the energy available to herbivores and decomposers. Herbivores and decomposers. NPP is the energy available to herbivores and decomposers. Okay. Now, अब एग्जाम में एनसीईआरटी कहता है कि एक फॉर्मूला है. व्हाट इज दिस फॉर्मूला? नॉट इंपॉर्टेंट एक्चुअली, बट याद रखने के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट. NPP is equal to GPP minus respiration. That's it. I mean, common sense. It doesn't make any sense, but still, whatever you've written, उसका एक mathematical expression है. ठीक है, बस और कुछ नहीं. Now, write secondary productivity. Please write secondary productivity. लिखेगी, this is the rate at which, this is the rate at which, this is the rate at which the consumers, this is the rate at which the consumers, bracket में animals, this is the rate at which consumers, bracket में animals, convert the food they eat, convert the food they eat into a new body biomass, into a new body biomass. Example, a cow eating, example, a cow eating, example, a cow eating grass, a cow eating grass
and gaining 25 kgs. A cow eating grass, example, छूट गया क्या? Example, a cow eating grass and gaining 25 kg in a year is an example of secondary productivity. Is an example of secondary productivity. Now tell me, everyone, focus here. इधर देखिए, अभी एग्जैक्टली तो यहाँ सही नहीं हो सकते हैं, बट एक बार ट्राई करके देखिए. हाँ, अभी अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल है इसको लेकर. सुनिए ध्यान से. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओपन ओशन. Okay. If suppose questions like these are asked in examination and they ask you to arrange it in terms of decreasing productivity, fine, and they will give you certain options. जैसे कि पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा ना, ऐसा होता है. तो अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन जो, so decreasing order of the productivity में a question can be framed here. Arrange the following ecosystems in terms of decreasing order of productivity. So be mentally ready for questions like this. अब एग्जैक्ट आंसर बोलना इसका काफी तकलीफ है क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना. बट स्टिल इफ यू ट्राई टू मेक सम गेसेस, कैन यू अरेंज इट? जैसे व्हाट विल कम फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ. प्लीज अरेंज एवरीवन. ऐसा फर्स्ट जैसे लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए कि पहले 2 आएगा तो 2 का सबसे ज्यादा, फिर 3 का, फिर 1 का, फिर 4 का. ऐसे एग्जांपल सॉर्ट ऑफ, जैसे दिस कैन बी डिफरेंट ऑप्शंस ना, ABCD कैन बी डिफरेंट ऑप्शंस. सो प्लीज ट्राई टू अरेंज योरसेल्फ इन जनरल. खुद से एक बार करके देखिए कैजुअली. तो प्लीज डू. रफ है सर, बस हम आपको बता रहे हैं कि these are the questions that you can be ready actually in exams. घर जाके आज ये सब चीजों के ऊपर रिसर्च करना है एक्चुअली. एक और ऐड कीजिए इसमें ना. ओके. These are the different ecosystem and every ecosystem will have productivity, we know, right? So arrange the ecosystem's productivity in decreasing order. Grasslands, tropical forest, desert, open oceans and coral reef. Coral reef, you understand? पढ़िएगा इसको ज्योग्राफी में बाद में, डोंट वरी. कोरल रीफ आर नॉट फाउंड डीप इन द ओशंस, राइट? तो इसीलिए सनलाइट वगैरह उनके पास ठीक रहता है. एंड कोरल रीफ जो इकोसिस्टम है, भले एरिया कम है उनका ना, पर हम लोग पर यूनिक एरिया में देखते हैं ना जी जीपीपी को. वी आर नॉट लुकिंग एट द जीपीपी ऑफ एंटायर ओशंस, राइट? वी आर नॉट लुकिंग द जीपीपी ऑफ एंटायर डेजर्ट. सपोज कीजिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, राइट? ये सैंपल साइज में, या 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है. अब उसी 1 स्क्वायर किलोमीटर का कोरल एरिया को ले लिए, वही 1 स्क्वायर किलोमीटर राजस्थान का डेजर्ट ले लिए, वही 1 स्क्वायर किलोमीटर हम लोग अरुणाचल प्रदेश का फॉरेस्ट ले लिए, करेक्ट? और वही 1 स्क्वायर किलोमीटर हम लोग कोरल रीफ ले लिए, राइट? तो इसके हिसाब से सबका अगर सेम 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 साइज ले लिया जाए तो फिर प्रोडक्टिविटी कैसा होगा? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर अर्थ एक्चुअली. दिस वी कैन नॉट नो ना, ये तो हम लोग जान ही नहीं पाएंगे एक्चुअली वो देखने से. तो एक पर यूनिट स्क्वायर एरिया को अगर हम लोग सैंपल साइज ले लें तो आपके हिसाब से अरेंजमेंट कैसा होगा? सबसे ज्यादा, ओके, सबसे ज्यादा आपके हिसाब से 1 का होगा. नेक्स्ट, ग्रासलैंड्स. कहां से इतना कॉन्फिडेंस लाते हैं आप लोग? फ्रॉम वेयर डू यू ब्रिंग दिस कॉन्फिडेंस? अच्छा चलिए, लास्ट में क्या होगा सबसे? लेट अस फिल द 2 एक्सट्रीम एंड्स फर्स्ट. हाँ, डेजर्ट और ओपन ओशंस. अब ओपन ओशन क्या होता है दोस्त?
वो क्या, व्हाट इज दिस? ये क्या होता है ये तो हम ऐसे कुछ होता ही नहीं ओपन ओशन, तो जानबूझ के आपके दिमाग का वो अननेसेसरी डिस्टर्ब करने के लिए देते हैं दोस्त। ओपन ओशन, व्हाट इज ओपन ओशन? एक्सट्रीम एंड्स पे अगर हम लोग चलें, इफ यू गो टू द एक्सट्रीम एंड्स, सो देन सबसे लास्ट में जो होगा वो होगा डेजर्ट। कुछ तो नहीं है ना डेजर्ट में। कैक्टस के अलावा कौन सा प्लांट है बताइए, जो हम लोग जानते हैं अपना गांवनिया लैंग्वेज में, अदर देन कैक्टस व्हाट प्लांट डू वी नो व्हेन इट कम्स टू प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? ओशंस में तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत चांसेस, हाँ लो होता है नो डाउट पर यूनिट स्क्वायर एरिया के हिसाब से, बट डेजर्ट मेरे हिसाब से लास्ट में जाना चाहिए। और डेजर्ट के आसपास ही रहेगा तो रहेगा ओपन ओशंस, या तो टू इसके बाद नहीं तो टू इसके पहले। Now again, there is no permanent answers to this. Are you getting my point? What is the sample size? It depends. So 2 and 3. Next, अब ग्रासलैंड और कोरल रीफ में आप किसको पहले रखेंगे? मान कोरल, जैसे मान लीजिए ए ये है, बी है भी सेम, तो पहले है 4 फिर है 5, राइट? और यहाँ पे है पहले 5 फिर 4। नाउ व्हाट ऑप्शंस, आप यही दो ऑप्शंस में स्टक है मान लीजिए, तो विच ऑप्शन विल यू गो विद? बी, बी ए ली। क्लास में भी 2 डिवीजन हो गया। अब यही डिवीजन घर जाके जब रिसर्च कीजिए तो नहीं होना चाहिए, ठीक? दिस इज द ऑब्जेक्टिव, इसको जाके रिसर्च कीजिए। जब आपका इन्वायरमेंट का हम सेक्शनल टेस्ट लेंगे लास्ट में 100 क्वेश्चन का, देन आई विल बी हैविंग 2-3 क्वेश्चंस लाइक दिस, डन? तो मेक श्योर दैट टू नो द प्रोडक्टिविटी। एग्जैक्टली देखने से इसका प्रोडक्टिविटी काफी कम होगा, ग्रासेस का जो प्रोडक्टिविटी है कंपेयर टू कोरल रीफ का प्रोडक्टिविटी। दिस इज वेरी हाई प्रोडक्टिविटी माय फ्रेंड, वेरी हाई प्रोडक्टिविटी, वेरी हाई प्रोडक्टिविटी। एंड ग्रासलैंड है अ मीडियम रेंज ऑफ प्रोडक्टिविटी, fine, and extremely low में open oceans, deserts, they will have extremely low. So actually देखने से this will be a correct answer considering the options which are given here, fine. As per the options, with respect to the options, the first one will be correct. Coral reef will have very high productivity because we are not seeing the entire coral reef, per unit square area को हम लोग देखते हैं, ठीक है? So these are the things that you have to keep in mind when it comes to questions, fine है, ठीक है? अब देखिए दोस्त, इसी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हम लोगों ने पढ़ा था कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ, रिमेंबर? कैरिंग कैपेसिटी, व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? कैरिंग कैपेसिटी। सो इफ द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज दिस मच, पॉपुलेशन इज दैट मच, इट मींस वेरी स्लोली दिस कैरिंग कैपेसिटी विल गेट ओवरबर्डन, एंड वंस द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इकोसिस्टम गेट्स ओवरबर्डन, we achieve something known as earth overshoot day. So when is the earth overshoot day in 2026? Everybody, 30th July. When was the earth overshoot day in 2025? 24th July, correct? Now, which institution in the world it calculates, or it gives about earth overshoot day? Global Footprint Network. Is it a United Nations related body, or is it a independent think tank type of scientific body? Independent NGO type है? Sure. United Nations लेना देना नहीं है? पक्का? Very good. लिखिए some exam related facts from this. Please write some exam related facts from this. अच्छा दोस्त देखिए, अभी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कोरल में भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक? पहले ये आ सकता है फिर ये आ सकता है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू, ओके? सो दिस इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशनल पर्पस, सो दैट यू गेट यूज्ड टू द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस यूनिट. दे विल नॉट आस्क यू दिस एंड दिस, राइट? दे विल आस्क यू एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, नॉट दिस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक? लिखिए एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स, लिखिए कि if productivity is asked between young forest and mature forest, write some exam related points, okay, based on previous year question. लिखिए first point कि if productivity is asked, if productivity is asked, if productivity is asked of young forest versus mature forest, if productivity is asked of young forest versus mature forest,
then now you tell me who will have most productivity. What do you mean by mature forest? Mature means ठीक ठाक ओवरग्रोन, एरिया बचा नहीं है ना, ठीक ठाक ओवरग्रोथ हो चुका है सब प्लांट्स का, बहुत पुराना और मेच्योर है फॉरेस्ट। यंग फॉरेस्ट इज ऑब्वियसली ग्रोथ रेट अभी बढ़ रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो आपके हिसाब से इन दोनों में अगर क्वेश्चन आ जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है राइट, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि इफ दिस क्वेश्चन गेट्स रिपीटेड सो इन दैट केस यू आर हैविंग आइडिया हु विल हैव मोर प्रोडक्टिविटी। यंग, व्हाई, हाँ, ओल्ड कौन बोला? कोई तो बोला था ओल्ड, क्या वजह होता है ओल्ड फॉरेस्ट बोलने का? ये यंग क्यों बोल रहे हैं? मतलब व्हाट इज दैट लॉजिक इन योर माइंड दैट इज कंपेलिंग यू टू से ओल्ड, सॉरी यंग? नया ट्रीज है तो हाई ग्रोथ मींस दे विल बी हैविंग मोर फोटोसिंथेसिस, फाइन, so obviously the productivity will be very very high, so 100% young forest will have very high productivity. But when it comes to total accumulated weight, so total accumulated biomass, total accumulated weight of old forest will be too high. अरे सब पुराना पुराना चावल लोग खड़ा है ना यार पेड़ लेके, तो उन लोग का टोटल वजन बहुत ज्यादा होगा दोस्त। बट नया जो प्रोडक्टिविटी है एनपीपी जिसको हम लोग बोलते हैं, एनपीपी विल बी हाईएस्ट इन न्यू फॉरेस्ट और यंग फॉरेस्ट, करेक्ट? So it means that concept has been fixed in your mind. Now you will not be committing mistake. So young forest will be highly clear. Young forest will be high. Second point, international biological program. Second point लिखिए, international biological program, IBP, international biological program in 1964, established in 1964. International biological program, IBP, established in 1964. It measured ecosystem productivity worldwide. It measured ecosystem productivity worldwide. It measured ecosystem productivity worldwide. ठीक, it measured ecosystem productivity worldwide. ब्रैकेट में जीके, घर जाके इसको पढ़िए। उसका लिखिए इसरो, ISRO, इसरो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? इंडियन स्पेस हेडक्वार्टर, बेंगलोर। तो बेंगलोर में उन लोग वहां से थोड़ी सैटेलाइट उड़ा के टेस्ट कर लेगा, बेंगलोर तो मेनलैंड है इंडिया का, करेक्ट? तो इफ इसरो is making satellites, if ISRO is making rocket launchers, then how will ISRO take a launch from Bangalore? So they must be having some launching sites. Launching site अलग होगा ना जी, और हेडक्वार्टर कहीं अलग होगा। वेरी गुड, बैंगलोर। चलिए, गुड पॉइंट लिखिए। इसरो estimates forest productivity, ISRO estimates forest productivity and biomass using remote sensing in India, using remote sensing in India. नाउ लिखिए रिमोट सेंसिंग के बाद एरो बना के जीके, मतलब रिमोट सेंसिंग बोल के क्या वर्ड है आप नया अगर आज सुने हैं तो इसका मीनिंग आपको खोज के लाना है, ठीक, कि क्या मीनिंग होता है रिमोट सेंसिंग का, ठीक है? गूगल कीजिएगा, बोलिएगा गूगल प्लीज एक्सप्लेन टू मी इन गांवलिया टर्म्स, राइट? तो गूगल आपको बताएगा रिमोट सेंसिंग का मतलब। साइंस में जब पढ़ेंगे तो इसका इस्तेमाल फिर आएगा, होगा। तो अभी से जानना है, बी क्यूरियस ऑल द टाइम व्हेनेवर यू हर्ड अ न्यू वर्ड। लास्ट में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI, फॉरेस्ट नहीं, ऐसे लिखिए कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया publishes, forest survey of India publishes Indian state of forest report, Indian state of forest report, which measures forest cover,
बायोमास एंड कार्बन स्टॉक. एंड कार्बन स्टॉक. नाउ अंडरस्टैंड, ओशंस का पर यूनिट एरिया देखिए तो प्रोडक्टिविटी कम होगा, है ना. लेकिन अगर ओवरऑल देखिए तो 70% कवर कर रहा है ना यार, समझने बात. थोड़ा 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 करके इट कवर 70% ऑफ द अर्थ एरिया. इट मीन्स ओवरऑल इफ यू सी दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट वास्टली. बट डेजर्ट नो वाटर, तो फोटोसिंथेसिस कहां से होगा, वाटर नहीं है, एक्सट्रीम क्लाइमेट है, हार्श क्लाइमेट है, तो डेजर्ट का प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली कम होगा. बात समझ में आ रहा है कि नहीं. एंड ओपन ओशंस का कहानी क्या है कि ओपन ओशंस में मतलब अभी एक एक करके देखिएगा तो ऑब्वियसली कम है, ओवरऑल 70% एरिया को कवर करता है ना, तो ज्यादा तो होना ही है ना. पैडी फील्ड फॉर एग्जांपल, पैडी फील्ड राइट, पैडी फील्ड का प्रोडक्टिविटी बताइए कैसा कैसा होगा, हाई लो मॉडरेट. हाई किसके रिस्पेक्ट में भी जरूरी है, बट इन जनरल भी यू कैन अंडरस्टैंड दैट वट एवर इज ग्रोइंग दैट विल हैव मोर प्रोडक्टिविटी, right, because it will make more photosynthesis, it will make more food. So paddy crop will have obviously more productivity. समझ के बाद पैडी क्रॉप में क्या पानी भी है, सनलाइट भी है, सब. तो दिस इज हाउ क्वेश्चन ऑन कंपैरिजन बेसिस कैन बी आस्क्ड. और इसमें सब कुछ लिंक है, कैपेसिटी लिंक है, कैरिंग कैपेसिटी लिंक है, फुटप्रिंट नेटवर्क लिंक है, ठीक, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क. इसमें आपको अर्थ ओवरशूट डे लिंक है. और इसी के साथ इसमें वी कैन से दैट हो जाएगा. अर्थ आवर के बारे में सुने हैं, अर्थ आवर नहीं सुने हैं, गूगल कर लीजिएगा, लिख लीजिए अर्थ आवर जीके. जस्ट राइट, जितना चीज में बोल रहे हैं हम जीके करने हैं वो सब पूछेंगे दोस्तों एग्जाम में बाद, राइट. तो जस्ट राइट अर्थ आवर, व्हाट इज अर्थ आवर, व्हेन डू वी सेलिब्रेट इट, व्हिच इज द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच सेलिब्रेट्स इट, व्हाट इज डन जनरली अर्थ आवर, व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड. लोग 1 घंटे के लिए अपना लाइट बंद करते हैं ना, ताकि ये एनर्जी को थोड़ा सा कंजर्व कर सके, ठीक है. So this is the first component that is to be kept in mind. Next, right, decomposition as a second component of in ecosystem. Decomposition. Now see, listen to me everyone, focus here. If suppose for example, if don't write anything, if suppose leaf, एक प्लांट का पत्ता लो गिर गया ऐसे जमीन पे, ठीक, तो जब जमीन पे गिर जाएगा तो देन देयर विल बी सम स्मॉल एनिमल्स सच एज सपोज कैटरपिलर्स, अर्थवर्म्स ना. अर्थवर्म लोग आएगा और इसको सबसे पहले तोड़ेगा अलग अलग पार्ट में, छोटा छोटा पार्ट में, दे विल मेक सम फ्रैगमेंट्स, ठीक, राइट टू अंडरस्टैंड. ये गिर गया, पेड़ के पत्ता गिर गया, नीचे गिरा हुआ है, देन सम एनिमल्स विल कम हु विल, एनिमल्स इन द सेंस कि नो नॉट एनिमल्स ऐसा बोल के, एनिमल्स आ जाएगा कुछ, तो जिसको हम लोग जो भी बोलेंगे बाद में बोलेंगे उसको, तो दे विल break this leaf into different fragments, small fragments. And once they break this leaf dead matter into some fragments, after some time, due to rain and other activities, these fragments are so small, so tiny that they will start seeping deep inside the soil. ठीक, लीचिंग होने लग जाएगा, ठीक है. दे विल बी अंडरगोइंग लीचिंग प्रोसेस. लीचिंग क्या है, पानी पानी के साथ small small fragments of the leaves will start going inside the soil. Okay. Now once they will go, since they are organic matter, living beings थे, organic matter थे, carbon compound होगा, तो इनके बीच में the reactions will start and catabolism or we can call it कि कुछ कुछ metabolic activity इनके साथ breaking further होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद after some time they will be turned into humus, humification, और ह्यूमस बनने के बाद थोड़े टाइम तक अगर आप इनको रखिएगा, सो दे विल बिकम इनटू मिनरल्स. दिस इज हाउ इट हैपेंस. फॉसिल फ्यूल मिनरल बनेगा, धीरे धीरे टूटेगा और फिर मिनरल बनते जाएगा,
सो हर इकोसिस्टम का कहानी यही, जब कोई मर गया किसी भी जंगल में, किसी भी फॉरेस्ट में, तो फ्रेगमेंटेशंस में उसको तोड़ा जाएगा. Detrivores will break this into fragments, and then with leaching, the dead organic matter will go seep inside the soil. Once it seep inside the soil, metabolic activities, catabolism and all these things they start, digestion starts, और इसके बाद ह्यूमिफिकेशन होगा, ह्यूमस बन जाएगा, और ह्यूमस बनने के बाद लॉन्ग टर्म में that will become into minerals. Okay, so this is the first question which is asked in your examination. Arrange the steps of decomposition observed in any ecosystem. So these are the steps. Now don't write. I've asked you not to write. Wait. अभी रुकिए, मत लिखिए इतना जल्दी. क्वेश्चन को समझिए क्या आ रहा है. ठीक, डिकम्पोजिशन, इसका कोई रियल लाइफ में कोई इसका यूजेज है? अरे एनी यूजेस? नो यूजेस. लाइफ में एग्जाम के अलावा इसका कोई इस्तेमाल नहीं है आगे में. इसको इतना मत पढ़िए, हर चीज को पढ़िएगा तो शहीद हो जाएगा. Try to identify it, क्योंकि I have one question in exam which is lined up and I'll be able to solve it with this one. Don't fall in love with all the subjects. Are you getting my point? The moment you will fall in love with all the subjects, the struggle will get longer. ठीक, बस एक दो सब्जेक्ट पकड़ना है जिससे प्यार किया जाए. इन्वायरमेंट में जरूरत ही नहीं. पीटी में आएगा तो खाली इतना समझने बात, आंखों का इशारा से पढ़ना है ताकि रिकॉग्निशन हो जाएगा. अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि अरेंज कीजिए इसको, स्टेप्स को, स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन अरेंज इट. व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन? FLC, करेक्ट. अब FLC, हाउ डू यू मेमोराइज इट? FLC कुछ दिमाग में स्टोरी बना सकते हैं? FLC, 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 ये स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन. FLC कुछ भी मन में FLC बना लीजिए. और कोई भी चीज लास्ट में क्या बनता है? मिनरल. तो हो गया, और बीच में H घुसा दीजिएगा लास्ट में, जरूरत नहीं. ऑप्शन तो देगा ना जी एग्जाम में, अरेंज करने देता है. यूपीएससी प्रीलिम्स तक ये क्वेश्चन दिया है. हर स्टेट पीसीएस का ये फेवरेट क्वेश्चन है. व्हाट आर द स्टेजेस? अरेंज इट इन क्रोनोलॉजिकल मैनर. तो FLC इज द स्टेज. फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म. अब ये सब याद नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा ना यार. सिर्फ FLC याद करिए तो काम आसान हो जाता है. थोड़ा सा लिखिए डिकम्पोजिशन, राइट. सम फ्यू थिंग्स. 2 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम हियर. अगर आएगा तो दोनों में से कोई एक आएगा आने से. ठीक, लिखिए कि ना हम आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं. मान लीजिए इसको एकदम नोट्स बनाएगा 100 पेज का, तो क्या फायदा फिर? हर सब्जेक्ट में उतना मेहनत नहीं करिए ना दोस्त, एनर्जी को बचाइए. मैथ्स सोच पढ़िए थोड़ा, सीसेट नहीं निकलेगा तो इसका फायदा नहीं है. क्या कहते हो दोस्त? ऑफ करेगा? किसका पास है रिमोट? बिटू ऑफ कर दीजिए. नाउ लिखिए कि डिकम्पोजिशन में लिखिए कि एवरी इकोसिस्टम undergoes this process. Every ecosystem undergoes this process where dead organic matter becomes detritus. Dead organic matter becomes detritus once they are dead organic matters becomes detritus once they are fragmented by detrivores. Once they are fragmented by detrivores. Once they are fragmented by detrivores. Earthworm, देखे होंगे earthworm, right? Once they are fragmented by detrivores. Detrivores is just a smart name of earthworm. बस गांवलिया लोग earthworm और साइंटिफिक लोग थोड़ा सा detrivores बात करता है उसको. ठीक, full stop. After this the dead organic matters
undergoes leaching, undergoes leaching in the soil, undergoes leaching in the soil, full stop. In leaching, LEACHING, LEA, sorry, not LW. In leaching, water soluble detritus are dissolved in water, are dissolved in water and are made available and are made available and are made available to the plants instantly and are made available to the plants instantly. बात समझ में आ रहा है? सुनिए, सबसे पहले पत्ता मर गया, पत्ता को फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया गया, ठीक, अर्थवर्म उसको तोड़ देगा। तोड़ने के बाद वो इतना पतला हो चुका है कि पानी के साथ, नॉर्मल वाटर के साथ इट विल गेट डिजॉल्व इन द वाटर। अब वाटर में सब कुछ डिजॉल्व होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सम विटामिन और सम फ्रूट्स दैट वी ईट, उसमें से कुछ विटामिन है जो हमारे बॉडी में फैट में एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ विटामिन है जो वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है, and it gets out of our body once we excrete. Example, vitamin C. How much vitamin C, whatever vitamin C you will eat, it will not be absorbed in your body. You know this or not? Vitamin C is water soluble, not fat soluble. तो जिसके वजह से कितना भी विटामिन सी खाइए वो कम हो जाएगा, बॉडी में नहीं रहता है बॉडी में, क्योंकि फैट में नहीं चिपक सकता है, वो पानी के साथ टॉयलेट के माध्यम से बाहर चला जाता है। उसी तरीके से जब डेट्राइटस टूटता है तो जो डेट्राइटस पानी में डिजॉल्व हो गया वो इमीडिएटली दूसरा प्लांट लोग के लिए न्यूट्रिएंट बन जाता है, करेक्ट। और जो डेट्राइटस पानी में डिजॉल्व नहीं हुआ, दोज विच आर नॉट डिजॉल्वेबल बाय वाटर, उसके ऊपर बैक्टीरिया और फंगस लोग अपना एंजाइम सिक्रीट करके उसको तोड़ने का काम करते हैं। पिक्चर क्लियर है? समझ में आ रहा है? उस प्रोसेस को कहते हैं कैटाबोलिज्म। लीचिंग में वाटर के साथ जो मिक्स हो गया वो प्लांट को चला गया, दूसरे प्लांट को जो ग्रो कर रहा है, और जो मिक्स नहीं हुआ पानी में उसके ऊपर बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम्स, दे सीक्रेट देयर एंजाइम्स, they try to break down this complex organic compound into simpler organic compound. Fine? And this process is known as catabolism. ठीक है? ठीक है? लिखिए, after leaching, after leaching, the dead materials which are not soluble in water gets precipitated, मतलब जम जाता है, gets accumulated लिख लीजिए, तो नहीं समझ में आ रहा है तो, क्योंकि इसका टेस्ट नहीं है। gets accumulated और gets collected or accumulated as salt, SALT, as salt, and bacterial and fungal enzymes break these salts into simpler substances, break these salts into simpler substances. This is known as catabolism. This is known as catabolism. ठीक है? अब जब ये सिंपलर सब्सटेंस में जब ब्रेक होता है डार्क कलर का, उसको बोलते हैं ह्यूमस। ठीक है?
समझ के बाद वी कॉल इट ह्यूमस। फिर लिखिए ह्यूमस, ह्यूमस में लिखिए अ डार्क amorphous substance, a dark amorphous substance, a dark amorphous substance. Amorphous means what is the meaning of amorphous? जैसे नहीं जान रहे, जो लोग नहीं जान रहे उनको क्या करना है, घर जाके शर्माना नहीं है, गूगल करिए, ठीक, क्यूरियस रहिए बस। एमोर्फस मतलब जिसका कोई शेप नहीं है फिक्स, जिने तेने जैसे तैसे वाला सब्सटेंस, राइट। इसको अच्छे से गूगल करिए। अ डार्क एमोर्फस सब्सटेंस, अ डार्क एमोर्फस सब्सटेंस called humus is formed. A dark amorphous substance called humus is formed, which decomposes slowly, and improves soil structure, and water holding capacity, This process is known as humification. Humification, HUMIFICATION, humification. स्पेलिंग गलत होने से भी चलेगा दोस्त, कोई बात नहीं। तो कौन सा आपको स्पेलिंग का टेस्ट है ना, टिक मारने वाला टेस्ट। नेक्स्ट देखिए, द लास्ट स्टेज is mineralization. The last state is mineralization, where microorganisms further decompose humus, releasing further decomposes humus, releasing inorganic compounds such as nitrogen, phosphorus, calcium, etc. ठीक, उसके बाद डन, दिस इज उसके बाद लिख लिए एक्सेट्रा, विच आर फर्दर provided as nutrients to the plants, which are further provided as nutrients to the plants, ठीक है। अब एग्जाम में ये सब चीज जरूरी नहीं है। एग्जाम में दो तरह का क्वेश्चन आता है डिकम्पोजिशन से। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, स्टेप्स, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन, fragmentation. They can simply ask you, what is the last stage of decomposition? They will give you options and they will ask you to identify. So these are the questions that can be asked. Okay, first type of question, ठीक है, from the stages. Second type of question आएगा process से। Example, listen to me carefully. दे देगा आपको क्वेश्चन में कि if the temperature is high, rate of decomposition will be higher or lower. Now wait, don't answer to this question, समझ रहे हैं? They will give you a YT component and then they will ask you the rate, करेक्ट। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो डिकम्पोजिशन से आया है पास्ट में, ठीक। हाई टेम्परेचर विल इंक्रीज डिकम्पोजिशन और डिक्रीज डिकम्पोजिशन, अ साइंटिफिक गेस इज रिक्वायर्ड है। टेम्परेचर इज हाई, डिकम्पोजिशन इट विल बी हायर और लोअर, मतलब स्लोअर और फास्टर, का है फास्टर मतलब स्पीडी, आई नो, बट व्हाई आई एम आस्किंग,
क्या वजह है, क्या लॉजिक लगा रहे हैं इसमें आप लोग? अब टेम्परेचर पूछ रहे हैं तो फिर उसको ह्यूमिडिटी में लेंगे, गर्म चाहिए ठीक है, काहे, क्या लॉजिक लगता होगा, मतलब जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं है वो भी जोर से बोला है कि ज्यादा हो जाएगा ना, तो हम जानना चाह रहे हैं क्या मन में आता होगा ऐसा, ये गेस मारने का क्या दिमाग में लॉजिक है? हाँ, इजी टू, गुड 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 लॉजिक, गुड लॉजिक, वेरी गुड लॉजिक, है तो फास्टर है वो, राइट? टेम्परेचर हाई, decomposition is faster. Now tell me, if sugar is more, sugar content is more in the detritus, समझ रहे बात? जैसे जो मरा है मान लीजिए उसको शुगर था या शुगर उसका कंटेंट ज्यादा है, तो डिकम्पोजिशन क्या होगा, फास्टर या स्लोअर? शुगर अगर ज्यादा है उस detritus में, detritus you understand, dead organic matter, if it has sugar content then the rate will be faster or slower? What do you think, like? एग्जाम में ये सब चीज छोड़ नहीं पाएगा, एग्जाम में याद रखिएगा, ये तो हम बता देंगे अभी, याद रखने के लिए तो थोड़ा सा गेस मार के देखना है खुद से। स्लो, स्लो होने का कारण, हाँ, तो फास्ट होगा, स्लो होगा। अच्छा मान लीजिए जैसे हम लोग बचपन में कट जाता था, कुछ कुछ घाव होता होगा बचपन में सबको ना, कट गया कहीं पे घाव हो गया कुछ, तो चीनी खाने से डॉक्टर मना करता था, याद है कि नहीं? नहीं मना करता है डॉक्टर, कभी कटा उटा नहीं है आपका? जैसे घाव है और घाव सूख नहीं रहा है, क्यों नहीं सूख रहा है घाव? क्योंकि चीनी खा रहे हैं बहुत ज्यादा, कभी ऑब्जर्व किए हैं नहीं? डॉक्टर को नहीं दिखाते थे, खुद से इलाज कर लेते थे। कट, अस्पताल था कि नहीं आप लोग का वहाँ, गाँव बस्ती में? ये सब चीज से क्वेश्चन आएगा, शुगर होने से फास्ट हो जाता है, इफ शुगर कंटेंट इज हाई द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज फास्टर, ओके फाइन, आपने गलती की, बट एग्रेसिव रहना है हमेशा। फैक्चुअल क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट मतलब रखिए, हाँ अपने पास रोकिए अपने आप को, फैक्चुअल गलत होने का चांस ज्यादा है, लेकिन जहां कंसेप्ट है वहां थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हैं धीरे धीरे, ठीक? तो लिखिए एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स, सम एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट में लिख दीजिए कि देखिए कि वार्म कंडीशन इंक्रीज डिकम्पोजिशन, वार्म, वार्म कंडीशन इंक्रीज डिकम्पोजिशन, वार्म कंडीशन इंक्रीज डिकम्पोजिशन, करेक्ट? वार्म कंडीशन, वार्म मतलब गर्मी, हॉट लिख दीजिए नहीं तो, वार्म कंडीशन इंक्रीज डिकम्पोजिशन। सेकंड पॉइंट, मॉडरेट मॉइस्चर, मॉडरेट मॉइस्चर फेवर्स, मॉडरेट मॉइस्चर फेवर्स decomposition, moderate moisture favors decomposition. Now tell me, presence of oxygen will increase decomposition or it will slow down the decomposition rate? ऑक्सीजन का प्रेजेंस इंक्रीज, राइट, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है ना, बैक्टीरिया फंगाई, सो द मोर ऑक्सीजन बेटर इट इज, देखिए मोर ऑक्सीजन बेटर इट इज, मोर ऑक्सीजन बेटर इट इज। उसमें लिखिए नेक्स्ट, इफ detritus is, last point, if detritus is, next point, more oxygen better it is na, last point, if detritus is rich, if detritus is rich in nitrogen and sugar, if detritus is rich in nitrogen and sugar, rate of decomposition will be faster, rate of decomposition will be faster, okay? मतलब अर्थवर्म, टर्माइट्स ना, मिलीपेड, ये लोग क्या है, डिकम्पोजर्स हैं, डन, sorry they are detributes. Now let us see a question, लास्ट मेरे तरफ से एक क्वेश्चन आपको मैं से लिख देता है, बस ऐसे बताइए, डोंट राइट इन योर कॉपी, जस्ट टेल मी,
Which of the following is are decomposers? Options are जल्दी क्विकली ऐसे ही कैजुअल. सिंपल आंसर इज -0.6. -0.6. बहुत जल्दबाजी है आप लोगों को दोस्त. सिर्फ बैक्टीरिया और फंगाई को डिकम्पोजर्स बोलते हैं. इन लोगों को डेट्रीवोर्स बोलते हैं. देखा लापरवाही का नतीजा. पर ऐसा ज्ञान देना तो उसके लिए ऐसा दिए. लिख लीजिए इसको. प्राइमरी डिकम्पोजर्स आर बैक्टीरिया एंड फंगी. फाइन. इनके लिए कभी भी डेट्रीवोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. डेट्रीवोर्स सिर्फ और सिर्फ अर्थवर्म, टर्माइट्स, मिलीपेड्स, इन लोगों को डेट्रीवोर्स बोला जाता है. जी बस यही डिफरेंस है दोस्त. मेंशनिंग वाइज प्राइमरी डिकम्पोजर्स मतलब डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस शुरू होता है ना, जब से तो फ्रेगमेंटेशन हम लोग बोल दिए, तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ फ्रेगमेंटेशन करते हैं एक्चुअली. डेट्रीवोर्स डेट्राइटस में कन्वर्ट करता है, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर को डेट्रीवोर्स डेट्राइटस में कन्वर्ट करता है एक्चुअली. और डेट्राइटस के ऊपर काम करते हैं डिकम्पोजर्स. सो डिकम्पोजर्स आर द थर्ड स्टेज में आते हैं वो लोग, लीचिंग के बाद. कैटाबोलिज्म में देखा एक्चुअली यही है डिफरेंस. एक्चुअली फीचर वाइज ही डिफरेंस है, बट नोमेनक्लेचर वाइज रिमेंबर दिस. दैट्स इट. अर्थवर्म, टर्माइट्स एंड मिलीपेड्स को हम लोग टेक्निकली साइंटिफिक लैंग्वेज में डेट्रीवोर्स बोलेंगे, और डिकम्पोजर सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं. जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट. ओके, टर्म के हिसाब से डन. ये सबका ट्रैप में नहीं जाना है दोस्त. मोर देन वन ऑफ द अबव मार दिए ठीक. ठीक, जस्ट नो इट इन जनरल. दिस इज एन एग्जैक्ट क्वेश्चन फ्रॉम बिहार पीसीएस जो आया है. एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग देते हैं. और बिहार पीसीएस का खासियत यह है कि दे विल गिव यू डी ऑप्शन. उसमें लिखा है मोर देन वन ऑफ द अबव. और पहले क्या था, 5 ऑप्शन आता था बिहार में. तो डी ऑप्शन होता था मोर देन वन, और एक ऑप्शन होता था ई, none of the above. It was very very tough. Exams like this becomes very tough when 2 options are there. Okay, so just know it as last fact. चलिए लिखिए एनर्जी फ्लो. third component of the ecosystem. Every ecosystem has this component. Now how will you memorize the steps of this decomposition? I guess याद हो गया ना. मान लीजिए एग्जाम में decomposition दे दिया, तो what are the steps? नेबम फटफट. हाँ, सबसे पहले तो एफएलसी लिख लीजिए ना यार. और लास्ट में मिनरल होता है, तो एच कहाँ होगा, बीच में होगा ना. मतलब फ्रेंडली लायंस कैन हंट मोर. फ्रेंडली लायंस कैन हंट मोर. नाउ दिस इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड. एफएलसी रिमेंबर, एचएम यू कैन डू बेटर, बट याद रखने के लिए फ्रेंडली लायंस कैन हंट मोर. ओके, बट दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स देन एफएलसी. फाइन, जस्ट रिमेंबर एफएलसी, फुल स्टॉप. यही क्वेश्चन आएगा दो, बस इससे हो गया, इसका फीचर से और इसका क्रोनोलॉजी से. दैट्स इट. ना एनर्जी फ्लो. एनर्जी फ्लो का नियम एक ही चीज जानना है. एनर्जी फ्लो में क्या, 10% एनर्जी लॉ ट्रांसफर. लिखिए इसमें रिमेंबर दैट राइट. अंदर एनर्जी फ्लो लिखिए कि रिमेंबर दैट there are two rules of energy flow. Remember that there are two rules of energy flow in an ecosystem. First,
only 2 to 4% of sunlight's energy is used by plants for photosynthesis Next, rule number 2. Only 10% of the total energy, is transferred from one trophic level to the next trophic level. This law was given by Raymond Lindeman. इसको Lindeman's law या 10% law भी बोलते हैं. We call it 10% law or Lindeman's law. Whatever is asked, don't be confused. ये बहुत important theory है ecosystem का. Only 10% energy is transferred. Raymond Lindeman का theory है. It is also known as Lindeman's theory, Lindeman's law or 10% law. Now the situation is like this. These are autotrophs, that is plants. This is trophic level 1. उसके ऊपर obviously number wise कम होगा जानवर ना, goats का number will be less than the total amount of plants, grasslands which are there. So this is trophic level 2. तो trophic level 2 में कौन लोग होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर जो सबसे पहले कंज्यूम करेंगे इसको. फिर गोट्स के ऊपर मिड लेवल रेंज आएगा जिसको वी कॉल इट सेकेंडरी कंज्यूमर. और सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद भी कई बार एक लेवल और देखने को मिलता है, वी कॉल इट टर्शरी कंज्यूमर. फाइन. सो दिस इज ट्रॉफिक लेवल 3 एंड दिस इज ट्रॉफिक लेवल 4. अब ये छोटा क्यों बनाया है? क्योंकि नंबर वाइज हम बात कर रहे हैं, नंबर हमेशा कम होगा. तो नियम क्या कहता है? लिंडमैन्स लॉ, दैट इफ दे हैव 1000 किलो कैलोरी, हाउ मच विल बी ट्रांसफर्ड हियर? 100 kilo calorie will be transferred here. Rest 90% will be lost to excretion, respiration and other activities. 100 kilo calories, how much will be transferred? 10 kilo calorie will be transferred, and from 10, 1 kilo calorie will be transferred. This is how this will go up. And in every ecosystem, my friend, energy will always flow from bottom to top. है ना? उल्टा भी आएगा क्या? Will energy flow be circular? Is energy flow circular? Yes, minus 0.6. सर्कुलर कैसे हो जाएगा जी? क्या है आप लोग? आदमी है क्या है? जब ऊपर जा रहा है ना, सर्कुलर कैसे हो जाएगा? लॉस हो गया ना जी एनर्जी. अरे भाई, energy flow is circular or energy flow is unidirectional. This cycle does not get completed. It's not a cycle which gets joined. ये मत गलती कीजिए कभी भी. ये अभी हम क्यों पूछे आपको सर्कुलर? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. This is a previous year question. Consider the following statement about energy flow. Energy flow is bidirectional and circular. माइनस है, गलत नंबर है, गलत मत. सर्कुलर तब ना होगा जी जब यहां से जाके कुछ मिल जाए. ये थोड़ी मिल रहा है, तो लॉस होते जा रहे हैं. अब इसको कौन खा लेगा? टाइगर को कौन खा लेगा भाई? टाइगर का स्लो डेथ होगा तभी तो टाइगर मरेगा ना. देयर इज नो वन हु कैन ईट टाइगर्स एक्सेप्ट ह्यूमंस.
but that too we don't see it in day to day affairs. सोइए मत, सोना नहीं है, सोना मना है, जो जिसको बोले हैं वो जान रहा है, ठीक, बात समझ में आ रहा है? जोसेफ के पीछे आप बैठे हैं जो वो, ठीक, नींद आ रहा है? नहीं, आज सुपर पावर का चश्मा पहन के आए, आज मुझे ज्यादा दिख रहा है पीछे तक। जैसे ऐसे ऐसे रहने से तो फिर हमको ना बस पता चलता है कि ओके पीपल आर देयर, बट एनीवे, सो दिस ट्रॉफिक वाइज लेवल इट शुड बी क्लियर, क्लियर है? याद रखिएगा, सर्कुलर नहीं होता है, ये एंड है, दिस इज द क्लोज एंड ओपन एंड विच गेट्स ओवर. So this is the energy flow that has to be kept in mind. Now, before we move to the associated aspects of energy flow, let us take a quick break, everyone. You can, take a quick break, come back, take oxygen from outside, and come back immediately. मैं सोचता वेडनेसडे बताएगा, वेडनेसडे रिकॉर्डिंग मना किया है. अभी ठीक है? जा रहा है? बैठिए बैठिए.
सबको बता देगा ना अभी। वेडनेसडे से बनेगा अटेंडेंस डेली, वेडनेसडे से सबका। अब जो नहीं आएगा वो गया काम से, उसका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक्सेस छीन लेना है। इफ यू आर एब्सेंट फॉर टू डेज इन कंटिन्यूएशन, योर एक्सेस विल बी टेकन आउट। हाँ, this online thing has disturbed the discipline of the students. बुलाई बुलाई बाहर विद्यार्थी लोग को बुला दीजिए, तो क्या कर रहा हूँ। तो कैसे 3 घंटा बैठ के आप लोग मेंस लिखिएगा, समझ नहीं आ रहा। Ready? Oxygen intake done. Now, so far we have seen that energy flow, uh, decomposition, productivity, all these are components of the ecosystem. And in energy flow we have seen that okay, every ecosystem energy will always flow unidirectional. Energy flow is always non-cyclical because there is no point of creating a cycle because energy is lost. Done? ठीक है? Now, moving forward, tell me, if I ask you, energy flow is unidirectional, correct? Correct? But what about the energy flow in a detritus food chain, if I ask you? If I ask you something like this, जैसे मान लीजिए, रुकिए, if I ask you about a grassland ecosystem, fine, तो grassland ecosystem में, एक grassland ecosystem में there will be a grassland food chain. Now बचपन के दिनों में food chain तो याद होगा सबको, बेसिक सा कहानी है, food chain याद होगा सबको. Now in this food chain what happens, that grass is eaten by grasshopper, fine,
Grasshopper is eaten by maybe frog. Frog is eaten by maybe snake, and snake is eaten by eagle. Eagle and vultures. This is how food chain works. So this is a grassland food chain. Okay. Yes or no? Grassland food chain it is. If I say what is a detritus food chain, what will come to your mind? Detritus food chain से क्या मीनिंग होगा? जैसे हम आपको बोले कि एक्वेटिक फूड चेन, तो एक्वेटिक फूड चेन का मीनिंग क्या हो गया कि छोटा मोटा जो फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन है ना, फाइटोप्लैंक्टन आर रिटन बाय जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन बाय स्मॉल फिश बाय बिग फिश बाय व्हेल, यही तो होगा ना यार, करेक्ट. सो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो इज, ये नहीं करी, एनर्जी फ्लो इज यूनि और बाई यूनि, रेस और नो. पानी के अंदर है तो ऐसे मदे के लिए ऐसे जा रहा है ना. Don't look it from your perspective. Look it from the perspective of the ocean ecosystem. So that is also unidirectional. If I say detritus food chain, what are the components of detritus food chain that is coming to your mind? ये कहाँ से शुरू होगा detritus food chain? And what will be the starting point? When I say grassland ecosystem, so it starts with grass and small trees. So from where a detritus food chain will start? Dead organic matter, dead living beings, dead matters. What will happen to this dead matters then? Dead matters will be broken down into detritus. Yes or no? So detritus by decomposers of detrivores. By detrivores. And detrivores are like earthworm. Earthworm will be eaten by frog or maybe owl directly. Yes or no? Owl eagle directly भी खा सकता है, snake भी खा सकता है, earthworm खाए ना. अब वो नीचे मत चला जाइए, वो अलग प्रोसेस है decomposition का. वो decomposition का process is a different process, right? We are talking about food chain. So again, this food chain will again go to maybe eagle and vulture. So detritus food chain starts with detritus, correct? Or the dead organic matter. So obviously, this will also follow a 10% energy law. रहा है ना? Yes. क्या डाउट है? क्या पूछ रहे थे आप बताइए? Okay, he is asking that eagle is the topmost consumer, trophic level 4. Fine. Now what will happen if eagle dies? The eagle dies, the eagle becomes a detritus. And again, eagle का detritus reaches the eagle as a trophic level. So again, this process starts from there. हो गया, मर गए तो खेल खत्म. और क्या है इसमें? ठीक, लिखिए associated concepts with energy flow. Associated concepts with energy flow. Associated concepts with energy flow. सबसे पहला इकोलॉजिकल पिरामिड्स. इकोलॉजिकल पिरामिड्स ये पहला कंसेप्ट है, रिलेटेड कंसेप्ट है. एनर्जी फ्लो के अंदर में हम लोग को इसको पढ़ना है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स. नाउ इकोलॉजिकल पिरामिड्स का मतलब समथिंग लाइक दिस. तो फ्रॉम इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव हम लोग 3 तरह का पिरामिड में भी देखने का मौका मिल जाएगा. पहला है इस टाइप का नॉर्मल पिरामिड जिसको बोलते हैं. फिर दूसरा तरह का पिरामिड जो हम लोग को देखने मिल सकता है वो है ऐसा, उल्टा, मतलब हम लोग के आंख से देखते हैं. अगर हम लोग उल्टा होकर देखें तो सीधा ही दिखेगा, हाँ, बट लुकिंग फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव. And then we can see a pyramid which is of this shape almost. So this is, in environmental sense, we will call it an upright pyramid. Normal pyramid, upright. Okay? मतलब ये जब पढ़ेंगे ना दोस्त, तो पढ़ते समय बहुत सारा पिरामिड देखने मिलेगा. तो वो बहुत सारा पिरामिड का कुछ नाम होगा. ठीक, नॉर्मल, उल्टा, सीधा, ये सब नहीं बोला जाता है. ये सब चीज समझने के लिए ठीक है, पर पिरामिड का नाम है. जैसे अपराइट, नाउ दिस पिरामिड विल बी नोन एज inverted. ठीक है, इनवर्स भी. एंड दिस इज नोन एज
स्पिंडल शेप पिरामिड. ओके, तो जस्ट नो द ग्लोसरी, बस टर्म को जानना जरूरी है आपका ये स्पिंडल शेप. ठीक है, ठीक है. नाउ सो इकोलॉजिकल पिरामिड आर अपराइट, इन्वर्टेड एंड स्पिंडल शेप. फुल स्टॉप. तो अब इकोलॉजिकल पिरामिड हम लोग को देखना है. सवाल आता है कि हु हैज गिवन दिस कंसेप्ट, राइट? So ecological pyramid as a concept was given by एल्टन, एंड इसीलिए इसको हम लोग एल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं. एग्जाम में अगर एल्टोनियन पिरामिड आ जाए तो स्किप करके मत आ जाइएगा उसको. ठीक, एक तो पढ़े नहीं है दोस्त, इन्वायरमेंटल पढ़े, एल्टोनियन क्या हो गया. So this is the another name which is to be kept in mind. Eltonian pyramid. Elton was a scientist who gave this concept of Eltonian pyramid. बाद में आर्थर टांसले ने भी इसको सपोर्ट किया था. Who gave the term ecosystem? ट्रांसलेशन पहले ही बता दिया. This is how it goes. Eltonian pyramid. Done? ठीक है. Now अब पिरामिड है तो किस तरह का पिरामिड पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा देखिए कहानी क्या है. हम लोग पूरे इन्वायरमेंट में दो तीन तरह का पिरामिड पढ़ेंगे. सबसे पहला पिरामिड है पिरामिड ऑफ नंबर्स. मतलब कितना ग्रास होगा, कितना गोट होगा, कितना टाइगर होगा, वो नंबर कम होता जाएगा. पिरामिड ऑफ नंबर्स. फिर पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास और वेट. और फिर पढ़ेंगे एनर्जी पिरामिड. व्हाट इज एनर्जी पिरामिड? दिस इज एनर्जी पिरामिड. करेक्ट. So how the energy moves? Always in direction. ठीक है, ये तो पढ़ लिया ना हम लोग. ये तो यूनिवर्सल है दोस्त. हाँ, हमेशा यूनिवर्सल है ये दोस्त, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा. बट फॉर एग्जाम्पल सपोज व्हाट इज पिरामिड ऑफ नंबर्स. कहने का मतलब है कि ग्रासलैंड में अगर हम लोग देखें, ग्रासलैंड में इफ वी सी, तो इन अ ग्रासलैंड नंबर ऑफ ग्रासेस आर मोर, number of deers are less, right? Number of jackals are further less, correct? Then number of lions and tigers are further less. So pyramid of numbers in a grassland will always be upright, inverted, spindle, upright. Energy flow pyramid in all the ecosystem will always be upright, universal, 10% energy load transfer. ठीक है. Now listen to me here, everybody focus. Wish. Suppose this is a tree. So there is one tree. So tree is autotroph. It makes its own food. Now how many animals they feed on this tree? Imagine the different types of species of birds. Yes. Imagine different types of caterpillars, termites, millipedes, earthworm. है कि नहीं? माने autotroph is one, but imagine the number of consumers which are dependent upon this tree. Can you imagine? The number के हिसाब से if I see tree pyramid, this is a grassland pyramid, right? ग्रासलैंड में ऐसा दिखेगा, ग्रेजिंग में ऐसा दिखेगा, जंगल में ऐसा दिखेगा. लेकिन अगर हम लोग सिर्फ एक ट्री को ले लें, वन ट्री, and if we consider that tree as an ecosystem, fine. So if we consider one tree as an ecosystem, so autotroph is only one, but number of consume, number wise my friend, right? वजन के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, नंबर के हिसाब से बोल रहे हैं. नंबर के हिसाब से तो बहुत सारा लोग है. तो what shape this pyramid will take? Invert. समझ में आ रहा है? कैसे समझ में आया? समझ में नहीं आ रहा. This pyramid will be displaying something like this. Why? Because number के हिसाब से there is one tree. Fine. नंबर के हिसाब से there is one tree. फिर इस ट्री पे कैटरपिलर्स, अर्थवर्म, ये लोग बहुत लोग रह रहे हैं. Insects are living. Fine. Number. You look at, I mean, if you look at the numbers wise, numbers के हिसाब से आप चलिए तो ठीक. उसके बाद number of birds which are dependent upon this tree. 100 बर्ड आएगा, 100 बर्ड उड़ेगा, 100 बर्ड बैठेगा, 100 बर्ड उड़ेगा. This happens like this. So number के हिसाब से a tree ecosystem will have inverse pyramid. आया ना? Inverse pyramid. आया ना? Correct.
नाउ यू टेल मी, गो टू द ओशन, ओशन में जाइए। आप ओशन में जाइएगा तो सबसे पहले देर आर सपोज सी ग्रास, या फिर आप उसको फाइटोप्लैंक्टन्स बोलिए। नाउ व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स, देखते हैं क्या होता है, गूगल पे भी करेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक। नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स विल बी मोर और लेस, मोर ऑब्वियसली नंबर वाइज, करेक्ट। फिर जू प्लैंक्टन भी है, स्मॉल फिशेस का नंबर तो बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक। फिर थोड़ी सी बड़ी फिशेस का नंबर बहुत ज्यादा होगा, एंड नंबर ऑफ शार्क एंड व्हेल आर वेरी लेस कंपेयर टू द नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल फिशेस, आया ना। तो पिरामिड ऑफ नंबर इन मरीन इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम विल ऑलवेज विल लुक लाइक दिस ओनली। ये क्या है, इन्वर्टेड या अपराइट, अपराइट। ग्रेजिंग फूड चेन, अपराइट। ट्री इकोसिस्टम, डेट्राइटस इकोसिस्टम, डेट्राइटस इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर्स, इकोसिस्टम आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट द फूड चेन। क्या लगता है, एक डेड ऑर्गेनिक मैटर, मल्टीपल अर्थवर्म्स, नंबर वाइज ना, अरे एक डेड ऑर्गेनिक मैटर, मल्टीपल अर्थवर्म्स, मल्टीपल बैक्टीरियाज, समझ रहे हैं बात। तो क्या समझे, एनर्जी, हाँ क्या समझे, हमने ये बोला कि ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, कंसेप्ट वाइज इज करेक्ट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि नंबर पिरामिड can be inverted as well as upright. There is no universal. बस समझ में आ गया। एनर्जी पिरामिड is always upright. Number pyramid may be depending upon the ecosystem. ठीक है, yes or no? This number pyramid. Don't try it. Wait. Very small things, very simple things. बहुत सारा इकोसिस्टम का टाइप हमने देखा है। नाउ इसी बीच में अब कहानी आती है, शिफ्ट होती है कहानी किसके तरफ, पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का मतलब होता है वजन, वेट। नाउ इफ वी सी द वेट वाइज, तो वेट वाइज फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन का जो भी वजन होगा, कंपेयर दैट वेट टू द वेट ऑफ द शार्क, कंपेयर दैट वेट टू द वेट ऑफ द वेल, वेल मछली, शार्क मछली। इन लोगों का वेट वाइज तो देयर वेट विल टू मच ना, स्मॉल फिशेस के कंबाइंड वेट से भी काफी ज्यादा होगा उस इकोसिस्टम और उस एरिया को देखिए तो वेट के हिसाब से व्हाट डू वी सी, शार्क का वेट विल बी सबसे ज्यादा, नंबर कम होगा सोइए मत, शार्क का वेट विल बी सबसे ज्यादा। दूसरे को मत देखिए, मान लीजिए हम आपको बोले सोइए मत, तो लोग दूसरे को देखने लगता है कि जैसे वो सो रहा है, हम नहीं। हाँ, समझे, ये एक्टिंग वाला काम नहीं करना है दोस्तों। हम अगर बोल दिए सोइए नहीं तो आप सो रहे हैं, जैसे आप भी सो रहे हैं, थोड़ा सा नींद आ रहा है, ये सुनो, इसी चला देगा। जब देखिए क्या होता है ना, जब जब आप जैसे मास्क लगा लिए ना, तो मास्क लगाने से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो मास्क का थ्रू होकर आपका चेहरा पे वापस आता है, समझ रहे, गरम गरम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज काइंड ऑफ स्पा विच गोज टू योर फेस। तो इफ एसी ऑफ है अगर, तो थोड़ा गर्म वाला माहौल है, प्लस आप लोग पता नहीं जैकेट वैकेट पहने क्यों बैठे हैं, आप लोग को देख के हमको गर्म लग जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि इट क्रिएट्स अ वेरी कोजी एटमॉस्फेयर। गर्मी में नींद आता है भी है, गरीब का ये पांचवा निशानी है कि उसको गर्मी में नींद आता है। तो कुछ लोग एक दो झपकी मार ले रहा है, बट ठीक है, चलता है, झपकी मारिए, कोई बात नहीं, लेकिन जगे रहना है, जागते रहना है। हाँ, और दूसरे को नहीं देखना है एक्टिंग करने की, ये उसको देख दिया, अरे सर उसको बोल रहे हैं, सुनिए। तो वजन के हिसाब, एवरीबॉडी फोकस, वजन का हिसाब से वेल का वजन बहुत ज्यादा है, फाइन। तो वजन के हिसाब से अगर आप इकोसिस्टम को देखिएगा, पिरामिड को देखिएगा, सो इट विल लुक लाइक दिस, है ना। मतलब नीचे से हमेशा शुरू करना है, ऑटोट्रॉफ से शुरू करना है, ऊपर तक जाना है। दिस केस में दिस लुक्स लाइक अ इन्वर्टेड पिरामिड। कम टू द ग्रेजिंग फूड चेन, राइट, कम टू द ग्रेजिंग फूड चेन।
नॉर्मल ग्रासलैंड फूड चेन में आइए आप, वेट ऑफ ऑल द ग्रासेस will be more than weight of all the goats. Correct, incorrect? Weight of all the grasses will be more than weight of all the goats which are dependent upon that grasses. Incorrect? नहीं, correct नहीं होगा क्या? बहुत बड़ा कॉमन पॉइंट है तब तो। एक टाइगर मान लीजिए 10 डियर का ऊपर डिपेंडेंट है, तो टाइगर का वजन और 10 डियर का वेट के हिसाब से अगर एक जंगल में हम लोग ऐसे, तो 10 डियर बहुत कम नंबर हो गया ना एक्चुअली एक टाइगर को सर्वाइव करने के लिए। तो क्या अंडरस्टैंडिंग बेसिस है, मतलब अपराइट होगा, इन्वर्टेड होगा, पिरामिड ऑफ नंबर्स के हिसाब से? ऑब्वियस सी बात है कि वजन जो है घास का ज्यादा होना पड़ेगा अगर 10 गोट को सर्वाइव कराना है उसके ऊपर। तो बायोमास नहीं क्या, weight of all the goats should always be more than the weight of the tigers. Correct? What do you think? पूरे जंगल में कितना 5-6 टाइगर होता है यार, उतना बड़ा जंगल, और कितना सारा हर्बीवोर्स है, इमेजिन करिए जिसके ऊपर टाइगर डिपेंडेंट है। ठीक, तो उसके हिसाब से दिस इज ऑल्सो ज्यादा चांसेस है कि वो अपराइट होगा। ट्री इकोसिस्टम में आइए, कम टू द ट्री इकोसिस्टम। वेट ऑफ ऑल द इंसेक्ट, बर्ड, ट्री, बर्ड्स, कैटरपिलर्स, अर्थवर्म will obviously be less than the weight of the tree. Yes or no? तो ट्री वही सीधा ही है, पर एक्वेटिक में उल्टा है। तो यानी एनर्जी बायोमास पिरामिड को लेकर भी देयर कैन नॉट बी अ यूनिवर्सल थ्योरी। बायोमास पिरामिड कैन आल्सो बी इन्वर्टेड एज वेल एज अपराइट। ठीक, नंबर पिरामिड कैन आल्सो बी इन्वर्टेड एज वेल एज अपराइट। वी कैन ओनली बी श्योर अबाउट एनर्जी पिरामिड व्हिच इज ऑलवेज अपराइट, नॉन बाई डायरेक्शन। ठीक है, अब थोड़ा सा लिखिए इसको, 3 pyramid of numbers, biomass and energy, just exam related stuffs only. इसमें लिखिए कि इसमें फर्स्ट पॉइंट पिरामिड ऑफ नंबर्स, pyramid of numbers may be upright or inverted, may be upright or inverted, full stop। सेकंड पॉइंट इसी में लिखिए, सेकंड पॉइंट ट्री इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम is an exception, tree ecosystem is an exception as it may display a spindle shaped pyramid, as it may display a spindle shaped pyramid or inverted pyramid because one big tree is the producer, one big tree is the producer, one big tree is the producer on which lakhs of lakhs of thousand कर दीजिए, on which thousands of herbivorous insects, on which thousands of herbivorous insects, on which thousands of herbivorous insects feed, FWD, feed, full stop. These insects are eaten by, these insects are further eaten by very few insectivorous birds
है ना. These insects are eaten by very few, number wise I am talking about, right? Very few insectivorous birds, and these birds are further eaten by top predators, are eaten by top predators like eagles, vultures are eaten by a small number of top predators, मतलब tertiary predators. ठीक है, तो क्या है? स्पिंडल शेप बोलिए, बात समझ में आया? इसको इन्वर्टेड बोलिए नहीं तो स्पिंडल शेप बोलिए. एग्जैक्टली देखने से स्पिंडल शेप हो. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ट्री 1, right? And there is 1000 insects. 1000 insects are eaten by maybe 100 birds, and 100 birds are eaten by maybe 2 to 3 vultures. So this is neither upright nor inverted. More or less, this looks like a spindle shape pyramid. Are you getting my point? So a tree ecosystem is an exception. Done. इकोसिस्टम जो एक्सेप्शन है. बाद बाकी पिरामिड ऑफ नंबर्स भी देखा जाए तो मरीन में और ग्रासलैंड में क्या है? अपराइट ही है ना, नंबर पिरामिड के हिसाब से. एक्सेप्शन इज स्पिंडल शेप. फिर लिखे बायोमास, राइट? पिरामिड ऑफ बायोमास लिखेगी बायोमास पिरामिड in terrestrial ecosystem, is always upright, whereas in aquatic ecosystem it can be inverted. It can be inverted. डन, क्लियर? और इसमें तो लिखने की जरूरत ही नहीं. एनर्जी पिरामिड ऑलवेज अपराइट. एनर्जी पिरामिड ऑलवेज विदाउट एनी एक्सेप्शन, मतलब ही नहीं एक्सेप्शन का, ऑलवेज अपराइट. नाउ टेल मी everybody, focus, push. A question, huh? Pyramid of numbers in a parasitic food chain. Upright, inverted, spindle. Question is, pyramid of numbers in a parasitic food chain is, think first, then open your mouth. Limo? Joseph? Look in. पहले तो याद कीजिए पैरासिटिक क्या था. पैरासाइट दो तरीके के थे, एंडो एक्टो पैरासाइट ना. होस्ट के ऊपर वो आके चिपक जाता है, तो नंबर पिरामिड के हिसाब से देखना है. यानी होस्ट कौन है? हर्बीवोर्स. जिसका बॉडी पे चिपक रहे हो वही हर्बीवोर्स है ना जी. तो हम लोग हो गए हर्बीवोर्स, और हम लोग का ऊपर चिपक रहा है कौन? पैरासाइट. तो हम लोग का बॉडी है एक, और ऑब्वियसली पैरासाइट का नंबर है ज्यादा, है ना. तो हर्बीवोर्स इज 1 and carnivores are multiple.
It means the pyramid will be everybody. Previous year question. ठीक है, थोड़ा सा एक दो लेवल ऑफ एनालिसिस लगाना पड़ता है, बस इतना ही आपको बताने वाला. Previous year question. It will be inverted. Now, is the concept clear? Yes, everyone. पक्का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलिए. Ecological pyramids. So this is what you have to keep in mind from ecological pyramid perspective. Very good. Next. नेक्स्ट लिखिए. मतलब ये तो फर्स्ट कंपोनेंट हम लोग पढ़ लिए इसका, पिरामिड्स. करेक्ट. वी हैव रेड अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड और एल्टोनियन पिरामिड. नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है इसमें ecological succession. Next we have to study is ecological succession. Now these two things we have to read it along with this, and then we move on to the nutrient cycle part. Understand the meaning of succession everyone. Succession means, suppose, देखिए ध्यान से सुनिए, सपोज कीजिए कि वोल्केनो फटता है. वोल्केनो आया, वोल्केनो देखें, कहां पे देखें, जाके देखें, जाके नहीं, बहुत सुंदर, बहुत मजा है. हम भी देखे हैं दोस्त यूट्यूब पे, क्या आनंद है जब वोल्केनो आया, राइट. और जब वोल्केनो का लावा जब जाके फैल जाता है हर जगह, राइट. व्हेन द वोल्केनो कम्स, सो लावा गेट्स स्प्रेड एंड आफ्टर सम टाइम द लावा cools down. So once the lava has covered the earth's surface, all the life form which was there, yes or no, all the life forms will be, क्या हो जाएगा, खत्म, खेला खत्म हो जाएगा. जितना भी प्लांट जानवर, तो उतना ज्यादा हीट है लावा में, मोल्टेन लावा मैग्मा में, वो तो मर जाएगा सारा का सारा लोग. तो आपको एक स्टोरी बताते हैं, और वो स्टोरी पे बाद में आएंगे हम. हाँ, व्हेन आई कम टू टीच यू इंडियन ज्योग्राफी, देन आई विल बी अगेन रिविजिटिंग दिस फैक्ट. तो हम आपको थोड़ा सा एक आपको ग्लिम्स दिखा रहे हैं उसका, थोड़ा सा सोच के देखिएगा बस. हाँ, नो नीड टू राइट इट एनीथिंग, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली बिफोर वी अटेम्प्ट दिस पार्ट. ज्योग्राफी की हिस्ट्री में राजीव सर विल बी टीचिंग यू दैट आज का डेट का ये जो मैप आपको दिखता है, ये पहले के जमाने में मैप था नहीं ना. तो कॉन्टिनेंट लोग आपस में लेफ्ट राइट गिजिंग बिजिंग होके मूव करता था, और मूव करते करते जाके अपना पे लोग जाके मिक्स मैच हो गया है, अटैच हो गया है. सो ये है एशियन प्लेट. प्लेट, यू अंडरस्टैंड प्लेट? जैसे इंडिया का जो पूरा जो लैंड है, हम लोग एक कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर फिक्स है, और ये प्लेट मूव किया है फिर लेफ्ट राइट. ये ज्योग्राफी में आप पढ़िएगा इसको, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में, कि आज के दिन का जो मॉडर्न जो कॉन्टिनेंट का अरेंजमेंट है, दिस इज बिकॉज ऑफ अ प्लेट मूवमेंट. ना, सो एशियन जो ये प्लेट है, दिस एशियन प्लेट दैट इज देयर, ये इंडिया का एक प्लेट, मतलब मीन देयर वाज एन इंडियन प्लेट. इस तरीके का दिखता था इंडियन प्लेट, फाइन. एंड इंडियन प्लेट स्टार्टेड मूविंग नॉर्थवर्ड, ऊपर जा रहा है, नॉर्थवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, इसमें जाकर टकराएगा थोड़े टाइम बाद. सो नाउ इट इज मूविंग नॉर्थवर्ड, इंडियन प्लेट इज मूविंग नॉर्थवर्ड. इस तरीके से दिखता है इंडियन प्लेट. इस पॉइंट पे, इक्वेटर के पास, यहां पे एक, मतलब एक हॉटस्पॉट टाइप का वोल्केनिक हॉटस्पॉट वाज प्रेजेंट, एंड दिस इंडियन प्लेट वाज मूविंग नॉर्थवर्ड. करेक्ट. दो आर्म्स है इंडियन प्लेट का, आप देख रहे हैं, टू आर्म्स आर देयर ऑफ द इंडियन प्लेट, एंड इंडियन प्लेट इज मूविंग नॉर्थवर्ड. तो यहाँ पे एक वोल्केनिक हॉटस्पॉट वाज देयर, राइट. एक वोल्केनिक हॉटस्पॉट था, एकदम था कि कोई हमको छू के तो दिखाया था, छुएगा तो हम फटेगा. तो जैसे ही इंडियन प्लेट ऊपर गया ना, थोड़ा सा रगड़ खाया, फ्रिक्शन हुआ, राइट. रगड़ खाने की वजह से एक मैसिव एक्सप्लोजन टुक प्लेस,
एंड दिस मैसिव एक्सप्लोजन विच टुक प्लेस, दिस पार्ट में जो मैसिव एक्सप्लोजन हुआ, ये एक्सप्लोजन को हम लोग मानते हैं कि डायनासोर्स लोग जितना लोग घूमता था, डायनासोर लोग पूरे वर्ल्ड में इन जनरल अलग अलग जगह पे, तो डायनासोर लोग का एंड हो गया है। इस लावा के फटने से ये डायनासोर लोग का खत्म हो गया, डायनासोर लोग, और जितना भी वेजिटेशन था इस पार्ट में समाप्त हो गया। अब लावा तो ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट में टकराया, फाइन, तो ब्लास्ट हुआ, लावा आया, लावा को फ्लो हुआ, तो ये सब पार्ट में उतना अनटच्ड रहा। तो लावा केम एंड लावा स्प्रेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, लावा स्प्रेड, बढ़ गया लावा, लावा बढ़ते बढ़ते पूरा का पूरा एरिया ये कवर हो गया। ध्यान से रखिएगा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इट, करेक्ट, ठीक है। नाउ सी केयरफुली, once these two arms on the Indian plate is moving up, so ये जो आर्म है, दिस आर्म, राइट, दिस आर्म गॉट स्टक इन दिस एशियन प्लेट, फंस जाएगा सबसे पहले। आई मीन इमेजिन द वेट ऑफ द इंडियन प्लेट, राइट, so this Indian plate with all its weight is going and it is stuck in this Asian plate. Once this will stuck, now imagine my 90 kilo body weight, right, and if I am going with such a huge force and I, मतलब one arm मेरा जाके जब one arm टकराएगा, तो obvious सी बात है कि my body will have impacts and 100% chances are there that I will suffer injury. Yes or no? Because it's not a balancing force ना, पूरा बॉडी के साथ एक साथ दाने से तो चलो वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना, force distribution will be there, but here I am hitting it with one hand. Now the moment I am hitting it with one hand, see carefully, the moment I am hitting it with one hand, this bent एशियन प्लेट में डेंट लग गया, घूम गया एशियन प्लेट पूरा, एंड दिस क्रिएटेड वेस्टर्न हिमालयास। ये है K2 नंगा पर्वत in the Himalayan region that you see. After some time, once this got stuck, obviously बात है कि this will get locked, and the moment it will get locked, what will happen? ये लॉक हो गया तो हम ऐसे ऐसे जाएंगे, होगा, यही तो होगा ना दोस्त, anti-clockwise turn will take place. After some time, this will get straighten up, ये फिर स्ट्रेटन अप होगा लॉक होने के बाद, एंड दिस इज नामचा बरवा. What is नामचा बरवा? Where Brahmaputra could not cross because this is multiple level fold. समझ में आ रहा है? So the river from Tibet is coming Brahmaputra and Brahmaputra cannot cut this fold, and as a result Brahmaputra is forced to make a U-turn, जिसको आप लोग सियांग बोल रहे हैं. So this is नामचा बरवा, this is नंगा पर्वत, this is Kashmir, मतलब अभी पाकिस्तान के पास है, and this is just outside the borders of Arunachal Pradesh, नामचा बरवा, and these two became the 2 point of Himalayas, करेक्ट. तो हिमालय ऐसे हो गया, और फिर जैसे ऐसे मान लीजिए हम टकरा गए ना, तो ऐसे टकराने के बाद ऑब्वियसली माई दिस पार्ट ये टकराएगा, पेट टकराएगा मेरा, नाउ दिस दिस पार्ट विल go and it will join it. तो क्या होगा, different layers of Himalayas are created, ठीक, फर्स्ट रेंज, सेकंड रेंज, थर्ड रेंज शिवालिक बना. और जब इतना मेरा बॉडी पार्ट जब टकराएगा दोस्त, हाँ सुन के देखिए, हाँ, तो माई एंटायर बॉडी विल हैव क्रैक्स, नीचे तक क्रैक्स होगा, राइट. तो बीच बीच में कहीं कहीं पे पहाड़ उठ जाएगा, एंड वी कॉल दैट अनाईमुडी, केरला, नीलगिरीज, and some mountains will come upon my body. But don't forget that this part में lava has spread, right? This part में lava has spread. Now this lava which has spread, if you see present times, निकालिए map everybody, take out the atlas. Now atlas में, in the atlas you open
Yes, page number 27 if you have Orient. Page number 27 if you have Orient Black Swan, and if you have Oxford, ये आपको सॉइल वाला टॉपिक खोजना है। सॉइल, जहां पे सॉइल है उसको खोलिए, जो भी एटलस आपके पास। ओरिएंट है तो पेज नंबर 27। ऑक्सफोर्ड, रुकिए, ऑक्सफोर्ड का गरीब लोग के लिए पेज नंबर, यस, पेज नंबर 38 इश, क्या 38 इश, इंडिया सॉइल एंड लैंड यूज करके कंटेंट में देखिए सॉइल। अब ऑक्सफोर्ड का भी अलग अलग वेरिएशन है ना। सॉइल खोजिए, सॉइल, रिवर बेसिन, इरिगेशन, 19। अगर आपके पास ब्लू वाला ओरिएंट पुराना है तो 19 सॉइल वाला चैप्टर खोलना है, ठीक है। खुल गया सॉइल? चलिए थोड़ा सा एटलस घर पे भी देखा कीजिए कभी दिन कि क्या क्या कहाँ कहाँ है। नाउ सी केयरफुली, विच इज दिस सॉइल, कौन सा सॉइल है ये वाला रीजन में? देखिए तो इंडिया के मैप में, विच सॉइल इज देयर? पढ़िए ना, कलर जो होगा वो कलर साइड में दिया होगा। मान लीजिए पिंक है तो पिंक सॉइल नहीं ना हो जाएगा जी। आपके मैप में पिंक से बना है, पिंक का मतलब कौन सा सॉइल है वो देखिए ना। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, व्हाइट, volcanic lava was there, and over a period of time erosion took place. Now I tell me one thing, if in this region the volcanic lava का स्प्रेड होता है, ठीक है, तो वोल्केनिक लावा के स्प्रेड की वजह से, ध्यान सुनिए, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म था दैट विल बी बर्न्ट लाइक एनीथिंग, करेक्ट, and the moment that will be burnt like anything, my friend, understand this, the moment they will be burnt like anything, after some time the plants that will be growing there, so they are growing there from scratch, because earlier all the plants were killed, all the living organisms were killed in that place, है ना। तो सबसे पहला प्लांट आया होगा कोई तो वहां पे, और वो प्लांट अपना फैमिली फिर बनाया होगा, वो प्लांट वहां के क्लाइमेट से लड़ा होगा, और उस प्लांट की वजह से आज थोड़ा बहुत हैबिटेशन आपको देखने को मिलता है उस रीजन में। दिस इज महाराष्ट्र, राइट, महाराष्ट्र है प्रेजेंट डे, फाइन। So after that volcanic lava, when everything is burnt to ashes, how life came there? That is the study of succession. That is the study of succession. When you build a new pond in your village, correct? When you build a new pond in your village, what you do? You instill life in that pond. मिट्टी खोदते हैं, पानी डालते हैं, मछली डालते हैं कि नहीं? तो लाइफ डाल रहे हैं कि नहीं उसमें? You're putting up life there. सक्सेशन हो रहा है वहां पे, करेक्ट। आपका पास जंगल है, जंगल में आग लग गया, जंगल में आग लगने के बाद जंगल फिर से उगना शुरू होता है, बट जंगल में आग लगने के बाद भी देयर आर सम वेस्ट प्रोडक्ट्स व्हिच आर लेफ्ट, राइट। सो इट मींस लाइफ वाज देयर, and due to some man-made factors or some other factors, life was destroyed. Now again life is coming back. So life is coming back, and it can be two possibilities. First, that there was no sign of life earlier. Second, there was life earlier. So जब लावा का ग्रोथ हो जाए, लावा के ऊपर से जब जमीन जब आप वापस जन्म लेते हैं, इकोलॉजी का जब वापस ग्रोथ होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, क्योंकि लावा के पहले लाइफ का कोई नामो निशान सब मिटा दिया ना लावा। जंगल का फायर तो फिर भी नामो निशान रखेगा। फ्लड्स आया, फ्लड्स के बाद फिर से रीजनरेशन होगा, इट मींस दैट इज अगेन अ सक्सेशन, करेक्ट। लावा के बाद फिर से सक्सेशन होगा, रॉक्स के ऊपर फिर से सॉइल आएगी, रॉक्स का क्या होगा? इरोजन होगा, रॉक्स के ऊपर कोई प्लांट आएगा, प्लांट अपना केमिकल एक्सक्रीट करेगा, रॉक्स टूटेगा तो फिर सॉइल बनेगा, सॉइल बनेगा तो फिर प्लांट आएगा। आप समझ रहे हैं बात? दिस इज नोन एज सक्सेशन, मतलब लाइफ आना किसी जगह पे।
सरप्राइजिंगली आपको बता दें, जितना भी ब्लैक सॉइल का एरिया है, इसमें क्या है, ह्यूमस होगा क्या? विल इट हैव ह्यूमस? थिंक फर्स्ट, देन ओपन योर माउथ. विल दिस एरिया हैव ह्यूमस? ऑर्गेनिक मैटर होगा इसमें? कैसे होगा? यस यस कर रहे हैं. तो पहले मरा है तो तब वो दब गया. वो 1000 डिग्री तापमान है. मजाक है? लावा है वो. वाग है किचन का. इट इज लावा माय फ्रेंड. हाँ, एवरीथिंग इज बर्न टू एनीथिंग. नया अमाउंट ऑफ, नया लेयर ऑफ सीमेंट प्लास्टर हो गया ना, एक तरह से देखिए तो. एवरीथिंग इज बर्न. नो ऑर्गेनिक थिंग्स आर लेफ्ट. It is the most unproductive area of the country, and maximum number of farmer suicide, they are reported from Maharashtra. Maximum farmer suicide. और सबसे गरीब फार्मर जबकि बिहार यूपी में है. ये सुनो, सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड का एरिया है पूरे इंडिया में. बस शुगर केन के लिए ठीक है, वो भी मंत्री लोग के पास ही है सब कुछ, क्योंकि है ही नहीं जमीन उपजाऊ, ह्यूमस होगा ही नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं बचा. तो ब्लैक सॉइल का इलाका है. ठीक है. अब ये इंडियन ज्योग्राफी, आई विल कम राइट एंड आई विल अगेन गो थ्रू द सेम स्टोरी. I've just told you that what is succession. और सक्सेशन को बताने के पहले हमने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है कि इस रीजन में जब डेकन लावा प्लेट्यू में जब सक्सेशन होगा तो सक्सेशन को पढ़ना है. यानी सक्सेशन दो तरीके का होता है. डोंट राइट इट, जस्ट लिसन टू मी. प्राइमरी सक्सेशन एंड secondary succession. Correct? Now primary succession is that succession where life was not there earlier. Nude. The area was completely nude. And in that nude area, life comes. So there will be one species which will come first. And that species is known as pioneer species. Pioneer. जो सबसे पहले आदमी आया. जैसे ईटानगर में घर बनाने के कोई तो आया होगा सबसे पहले. तो पायोनियर स्पीशीज है. फिर अपना बस्ती वालों को बुलाएंगे, अपना कम्युनिटी को बुलाएगा वो आदमी, और इन्वायरमेंट से लड़ेगा, सब चीज से लड़ेगा. धीरे 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 लाहे लाहे उसका बच्चा लोग होते 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 अगेन इन्वायरमेंट विल चेंज, बट अगेन समथिंग विल स्टे देयर. हाँ, ऐसे ही सोसाइटी, ऐसे ही इकोलॉजी इवॉल्व होती है. तो इवॉल्व होगी तो लास्ट वाला जो स्पीशीज उसको बोलेंगे क्लाइमेक्स. सो पायनियर स्पीशीज, न्यूडेशन, इन्वेजन. हाँ, सबसे पहले न्यूड एरिया है, someone will come to invade it, then someone will make colonies. So what are the steps of ecological succession? This is important for the examination. बात समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है. इसको पढ़ेंगे कल हम. अभी थोड़ा करते हैं टेस्ट इसके पहले क्लास का. ठीक है, क्योंकि ओवर हो जाएगा कुछ ज्यादा. सुनिए मेरा बात ध्यान से. तो टुमारो वी आर गोइंग टू सी, सॉरी टुमारो इज ब्रेक. फाइन, कल आपको छुट्टी है, हम लोग मिलेंगे परसों. डन? पैक बुक मत करिए, रुकिए. Don't move. Listen to me. Tomorrow there will be no class, just because we took class on Sunday. So tomorrow I'm just giving you off, just to compensate the Sunday break. Done? That's it. Just get your things in order, read notes, do all the previous things, sleep properly tomorrow, correct? Till late, and we'll meet day after tomorrow. Okay? So now, day after tomorrow जब हम लोग मिलेंगे तो क्या करेंगे? इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे. ठीक? न्यूट्रिएंट साइकिल को देखेंगे, and then we will shift to one of the most interesting and current affairs topic known as biodiversity. अब ये हो गया इकोसिस्टम. ठीक है, फिर बायोडाइवर्सिटी की तरफ हम लोग चलेंगे वेंसडे को. ठीक है, चलिए. नाउ क्लोज योर बुक्स, कीप योर बैग्स, और एक कॉपी रख सकते हैं तो ऐसे खुद से, क्योंकि आई एम गोइंग टू डिस्प्ले सम क्वेश्चंस हियर, सो यू कैन जस्ट राइट 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, व्हाटएवर यू थिंक इज करेक्ट, एंड आप खुद से उसको मिला सकते हैं बाद में. ठीक है, चलिए. जिसका आंख में तकलीफ है वो YouTube पे खोल ले. YouTube पे भी क्लासेस आर लाइव, यू कैन ऑल्सो वॉच इट देयर. अगर पीछे से नहीं दिख रहा है तो, नहीं तो आगे आने का कोशिश करिए. थोड़ा सा ये वाला लाइट ऑफ कर दीजिए, तो 2 लाइट ये वाला. प्लीज स्विच ऑफ दीज 2 लाइट्स. पीछे से वो ये वाला लाइट दोनों. हो जाएगा, काफी है.
पीछे कर रहे हैं, हाँ तो साइड जाएगा, गर्म लगेगा लेकिन ना कुछ। दिख रहा है? विजिबल एवरीवन? नहीं तो लाइट ऑफ कर दें, बंद कर दीजिए सारा लाइट, चलिए मूवी देखते हैं थोड़ा। आंख पे स्ट्रेस पड़ने से बताइए, हाँ ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन है, इट वोंट टेक मच। वाह ठीक है, अभी हो जाएगा ना, अभी बंद कर दीजिए पीछे वाला, कोई सोएगा नहीं, हाँ वाह दिख रहा है? रेडी गाइस, मन में आंसर रखना है, कोई मुंह से नहीं बोलेगा, ठीक? फर्स्ट क्वेश्चन, रीड प्रॉपरली। सोच लिए आंसर करेक्ट है, बहुत बढ़िया, बधाई हो, मुंबई आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी? मन में सोच लिया आंसर ना, देखते हैं। मिक्स बैग है, ठीक है, तो मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक हुआ है, गुड। क्यों हुआ है? Eurythermal does not mean a regulator, correct? Both are different things, don't confuse. Eurythermal means it just tolerates wide range, okay? Never mix both. Second, regulators, they also have an upper limit and lower limit. होगा ही ना भाई साहब? So not necessarily all regulators are eurythermal. So just know it. Just know that only third statement is correct because ये possible है ना statement, और second statement क्या है? Extreme है, क्यों? क्योंकि necessary word added है। All are necessarily यूनिथर्मल, यानी ये रिस्की पॉइंट है। साइंस में बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन होता है कि नहीं? तो नेसेसरी वर्ड होने की वजह से दैट इज वाज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट लिख दीजिएगा, गलत हुआ है कि सही? हाँ, -0.6 गलत पे, +2 सही होने पे। नेक्स्ट,
सोच लिए? सही है? वाह, क्या बात। मेंटेन इंटरनल तो मैंने बाय डिफॉल्ट रेगुलेटर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में ही है मेंटेन इंटरनल, तो यानी नीचे वाला तो दोनों होगा नहीं। अब है कि माइग्रेट भी कर रही है फ्रेश वाटर में, मैंने मरीन फिश मतलब ओशन का फिश है, फ्रेश वाटर में जा रही है, यानी ऑब्वियस सी बात है कि शी हैज मल्टीपल स्किल्स, यूरी हलाइन। तो यूरी हलाइन है रेगुलेटर। वेरी गुड, नेक्स्ट। ये तो याद नहीं होगा क्या? म्याओ म्याओ मत बोलिए मुंह से, आंसर मन में रखिए। रेडी? ठीक है। ग्लोगर वाज कलर ना, बर्गमैन वाज अबाउट बॉडी साइज, एलन वाज अबाउट एक्सटर्नल साइज। वेरी गुड। रेडी? लेट्स सी द आंसर। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग, टू मच ओवर ग्रेजिंग बियॉन्ड इट्स कैपेबिलिटी। हिला दिया है क्या? ठीक है, हो जाएगा। डन। स्टेनो हलाइन, स्टेनो थर्मल है, यूरिया लाइन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। डन। हाँ, इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा था क्या? हाँ यार, देखा लापरवाही का नतीजा। इनकरेक्ट पूछ रहा था ना दोस्त, क्वेश्चन में इनकरेक्ट है ना ऊपर। तो देर ऑलवेज, ऑलवेज मतलब एक्सट्रीम हो गया। देर ऑलवेज कन्फॉर्मर्स फॉर ऑल अबाइटिव फैक्टर्स, नीड नॉट बी नेसेसरीली, नीड नॉट नेसेसरीली ऑल अबाइटिव फैक्टर्स तो चार है, तो सबके साथ वो कैसे कंफर्म कर जाएगा? हाउ कैन यू बी श्योर, राइट? सो ये अभी इसमें इनकरेक्ट नहीं देखिएगा तो फिर क्या फायदा। मास्टर जी पढ़ाए भी, आप पढ़े भी, अब एग्जाम में मान लीजिए आंख नहीं चल रहा है आपका, तो किसका गलती है उसमें? नेक्स्ट। बहुत लोग छोड़ देगा देख के, ये बहुत टफ, बहुत ज्यादा है, पढ़िए।
डन? नहीं पढ़िए तो पढ़िए. डन? Oh my God. Let's see then if you done. ठीक हुआ है? यही तो जल्दबाजी है. क्यों जल्दबाजी करते हैं? Earth Overshoot Day marks the date when humanity's resource consumption exceeds the Earth's annual regenerative capacity. करेक्ट है? एब्सोल्युटली करेक्ट. यही तो बात है, यही डेफिनेशन आपको बोला था, घर से देखिए ना. नेक्स्ट, इफ अर्थ ओवरशूट डे अकर्स अर्लियर ईच ईयर, यानी इस साल 30 जुलाई है, नेक्स्ट ईयर सपोज 20 जुलाई को हो जाए ना. इफ अर्थ ओवरशूट डे अकर्स अर्लियर ईच ईयर, इट इंडिकेट्स दैट ग्लोबल फुटप्रिंट इज डिक्रीजिंग. करेक्ट और इनकरेक्ट? अब फुटप्रिंट और उसके बीच का रिलेशन तो पता होना पड़ेगा दोस्त. व्हाट डू यू थिंक? चलिए. थर्ड, persistent overshoot implies that human population and consumption levels are exceeding. Persistent ecological overshoot means that human population are exceeding the planet's carrying capacity. Obviously. Correct? Obviously, yes. First, go and read about Earth Overshoot Day and the global footprint once again. Fine. Ecological footprint क्या होता है इसको पढ़िए, फिर इस पे we'll be again discussing this once we meet day after tomorrow. Next. Done? ठीक है, बहुत बढ़िया. क्या बात भाई, भूकंप आ गया क्या? भागने का टाइम आ गया था. नेक्स्ट. जोर से बोल के पढ़ने जरूरी नहीं है, मन से पढ़िए ना थोड़ा. फोटो ले लीजिए जिसको नहीं दिख रहा है. बहुत हेक्टिक है. हो गया? पढ़िए पढ़िए पढ़िए. डन? नेवम हो गया. लेट्स सी द आंसर. ठीक है, नहीं सही हुआ है, अफसोस तो बात है. सही होना चाहिए दोस्त ना. चलिए फिर लाइट जलाए जाए. लेट्स स्विच ऑन द लाइट्स एवरीबॉडी. फाइन देन. राइट, आज से आपका शाम में ऑफिशियली फ्रॉम टुडे डिनर, सॉरी डिनर कह रहे हैं, डिनर टाइम पे 9 p.m. drill will start with all the topics that we have covered in 3 days. Okay, questions will obviously be different than this.
that we have practiced. So from today onwards, your daily practice at 9 p.m. starts in the app. अब ऐप का लिंक वगैरह आज के दिन हम टेस्ट का लिंक भेजेंगे, बाद बाकी आप सबको पता है कैसे खोजना है, ठीक है। जिसको नहीं पता है कृपया मोबाइल एप्लीकेशन खोलिए अभी बैठ के, प्लीज ओपन। दोज हु नो they may also wait for a minute, don't rush. Please open your mobile application of Sarvasya Academy. खोले, सब कोई खोलिए, खुल गया? अरे सुनो ना, ऊपर में लेफ्ट, आपका लेफ्ट में ऊपर में 3 डॉट होगा इन योर लेफ्ट, है? ऐप ही नहीं है, ऐप डाउनलोड कर लिए जाके। 3 डॉट है, खोले, उस पर क्लिक करिए, गो टू फ्री मटेरियल्स, मिला? डॉट पे क्लिक करने के बाद फ्री मटेरियल्स मिला, ओपन दैट। उसमें होगा मटेरियल्स नोट्स टेस्ट करके, गो टू टेस्ट, ऊपर वाले में गए। अब उसमें टेस्ट में डे टू डे बेसिस पे 9 बजे रात में टेस्ट अपलोड हो जाता है। तो आज से आपका इन्वायरमेंट विल स्टार्ट बीइंग अपलोडेड देयर, डन। सो सी यू डे आफ्टर टुमारो एवरीवन। Everyone must have atlas on that day, because we are starting with biodiversity and without atlas there will be no class on Thursday, ठीक है, वेडनेसडे को, सॉरी आई मीन। तो बिना एटलस के मत आइएगा दोस्त, आने से भी घर वापस चले जाइएगा क्योंकि बहुत बोरिंग लगेगा दोस्त। और गरीब लोगों के लिए मोबाइल वाले में भी हम एटलस खोजे हैं टेलीग्राम से, ठीक, जो गरीब लोग हैं उसके लिए तो हम एटलस वाला पीडीएफ भी भेज देंगे मोबाइल में आपका। बट प्लीज इधर उधर 2-3 दिन फालतू मोमो नहीं खा के एटलस को खरीद लीजिए, बहुत जरूरी चीज है आगे पूरा इस एग्जाम में प्रोसेस में, इट विल हेल्प यू, फाइन। सो डोंट कम विदाउट एटलस डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू, एंजॉय, गुड नाइट।